अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी How are you? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सोफिया, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू वेरी मच। Great to meet you, and it's our honor, प्लेजर mashallah, that you join us tonight for the alumni talks. प्लेजर Thank you थैंक very यू much. वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। हाँ, you're doing a wonderful job and I'm excited to be here. Thanks a lot, Sophia. So, in the alumni talks, we normally are talking about the alumni itself, and you're the alumnus tonight. Mashallah, say I was reading about you, and I was pretty excited to talk about your journey. तो इस पूरे सेशन के अंदर जिस तरह से हम बात करते हैं with a specific timeline that starts with your period in NAD. So without wasting further time, let's start with it. How was your life in NAD as a student? So, like it was a mixed life. I think. Mm-hmm. I think we enjoyed the time because we were in that phase of life where you could enjoy and we had freedom to enjoy. But I think there were also times which were very challenging and difficult. Very difficult times as well, and very challenging time as well. And see, the thing is that I had never thought that I would be an engineer. So I accidentally joined NED, and uh, and then it was a difficult time. I think initially, when you go in, you are excited. You think that it's a new place. You will be studying engineering with people who have the same kind of merit as you. Excited, like you have also known some alumni in your family as well who are leading better lives. So you go in, you join them, and then you realize the challenges. So we can talk about those as well. But I think the first thing that I want to talk about is that I think NED, the best thing about NED is that even, I mean, at least at that time when I was there, we were all admitted on merit. So there was no self-finance at that time. And not many people were doing O levels, A levels. So like all of us were actually selected based on the intermediate merit, and the fees was very low. So it was affordable education for merit-based people, and it really gave chance to people like myself who came from middle-class families or lower middle-class families to actually upgrade our lifestyle, get that education, and after that get into the positions which made us support our families, support ourselves, grow. Grow in net value as well, and both economically as financially as well as academically or professionally, I would say. So it gives you that kind of chance, and I think the NED must be recognized for that, for doing that every year for in that time. Because when I joined in 91, 92, I think in all 500 or 600 people were admitted every year. So it changed the life. I would say it was life changing for those people. So that and affordable. And I realize now that NED education has become very expensive, relatively expensive. I think it hurts people's pocket to a little extent, and especially when we talk about people who were coming from our background, who were lower middle class, who were entering that space. For us it was not a lot of money that we were paying. So but now I think people pay a lot of money, so that is one thing. And then with self finance and so many other departments coming up, and the whole concept has changed. It's still Surely, relatively we'll discuss about this expensive. generalization for sure. But I want to ask specific question about yourself. How was your life in NAD? I mean, like, what was the mischievousness and all that? How you guys enjoyed with your class fellows? What were the relation with the teachers and all that? How was the professor like? So just walk us through that time in the 90s, because we had sessions with the people who were in the 2000s. We had the sessions which were in the 70s and the 80s. You're the first one maybe which is coming from the 90s. So we want to hear. We do have Safi Saab and all from the late 90s. Yes, but you are like the early 90s Early 90s. era. Yeah. So how So was I it? think अच्छा देखिए, again I think early 90s was also challenging for Karachi, because in 92 the year we joined in, उससे पहले like हमारा अगस्त में शुरू हुआ था, जून में कराची में ऑपरेशन हुआ था MQM के खिलाफ. और obviously
वो एक बहुत टर्निंग पॉइंट था कराची इटसेल्फ, शहर के लिए भी, ठीक है ना, कि आपकी एक पार्टी थी जो भी जिस भी तरह की, आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें, बट इररिस्पेक्टिव वो एक चैलेंजिंग टाइम था, लाइक यू नो state was actually using force against people. और आप इतने बड़े शहर के अंदर ये हो चुका था, तो जून जुलाई में ये हुआ था, या जुलाई में हुआ था, हम अगस्त में गए थे, तो पॉलिटिकली आई थिंक हम उस पॉइंट में पहुंचे थे जब रिप्रेशन शुरू हो चुका था कराची के अंदर। तो अगर हम देखें कि 80s वाले जो आए थे वो उस वक्त वायलेंस था तो था ही, लाइक स्टूडेंट पॉलिटिक्स, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी बहुत थी, लेकिन जिस वक्त हम आए उस वक्त रिप्रेशन हो चुका था। तो वी were in a point, I think it's a very good question, we were in a point where the political parties were dying within educational institutes. So like we saw the fall of Jamiyat, of APMSO, of Pashtun SF. So these were there in our times, or you know, people, students, whatever, they were there, but they were dying. So they were like fighting their last battles actually. If we look at it, the 5 years that we spent there. So in terms of and at that time, I think NED was losing a lot of, the students were losing a lot of their rights as well. So we have to also acknowledge that, you know, when I went back and started teaching in 2003 and 4, I taught, no, 2002 and 2000 and 2003 and 2004, I taught at the electronics department as a visiting faculty. And at that time, I realized that, you know, what we saw as something that, you know, start of repression, it has peaked at that time, in the sense that students had no rights left. अटेंडेंस कंपलसरी हो गई थी, और पता नहीं टीचर्स स्टूडेंट्स को बुला सकते थे, उनके पेरेंट्स को बुला सकते थे, रेस्टिकेशन हो रही थी, सस्पेंशन हो रहे थे। सो ये जो चीजें हमने कभी अपने टाइम पे सोची भी नहीं थी, ठीक है ना, हमारे पास पॉलिटिकल तो रिप्रेशन आप आ कभी गया, लेकिन रेस्टिकेट हुई या हमारी किसी को लाइफ में करवाया बहुत अच्छा रेस्टिकेट? था। आप कभी रेस्टिकेट हुई नहीं, या किसी को मैंने तो उस करवाया बच्चे को रेस्टिकेट? बचाया, मैंने तो उस बच्चे अच्छा। को बचाया, क्योंकि मैं तो इसके बताएं खिलाफ हूँ। किसको बचाया आपने? अच्छा अच्छा। वो यार 2002 में मैं थी, तो उसने वो ही वाज सस्पेंडेड फॉर, यू हम्म। नो, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम टीचर के साथ हर तरह का काम कर सकते थे। एक वजह ये थी, मतलब इस तरह का काम कि हम उनके बाद जहाज भी उड़ा के फेंक सकते थे, हम क्लास में अटेंडेंस लगा के सामने से निकल के जा सकते थे, हमें कोई ऐसी मतलब कोई मना नहीं कर रहा होता था कि आपने बैठना है क्लास में और आप आपने वैसे करना है। पहली होंगी जो जिसको इस तरह का मतलब माहौल मिला होगा, अदरवाइज हम लोगों ने सबने तो कोई इस तरह का माहौल नहीं देखा है कि भाई नहीं जहाज उड़ा देखा रहे ना, हैं या फिर अटेंडेंस के बगैर निकल रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ये ना, तो यही तो मैं कह रही हूँ ना, कि जब मैं ओके। खुद पढ़ाने गई तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप अटेंडेंस लें। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, अगर मैं सारे बच्चों की अटेंडेंस दे दूंगी, वो बच्चा जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले, लेकिन वो जब, और एक तो इन्होंने कुछ बच्चों को रेस्टिकेट किया और सस्पेंड किया, और मैंने उनको अपनी क्लास में आने दिया। मैंने कहा कि आई डोंट बिलीव इन दिस सिस्टम जिसमें कि आप विक्टिमाइज करते हैं बच्चों को। तो मैं तो उस बच्चे को लेकर भी आई, मैंने उसको पढ़ाया भी। उसके बाद वो कोई फंक्शन भी था, मैं वहां पर भी उसको ले गई। मैंने कहा कि नहीं, तो मेरे साथ चलोगे, मेरी गाड़ी में जाओगे, हम जाएंगे, मैं देखती हूँ कौन तुम्हें रोकता है। क्योंकि ये गलत बात है कि आप एक 18 से 20 साल के बच्चे को इस तरह से कहेंगे मैं तुम अपने अम्मा पापा को बुला के ले आओ। भाई एडल्ट है हम, मतलब अब अम्मा पापा का कंट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन चले सही है। तो वो अपने हमारा जमाने में जो बताएं, व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, को ऐसा वाकया जिसको याद करते हो अभी भी मजा आता हो, हंसी आती हो, या यार दोस्तों में जिक्र होता मजेदार हो? हो जाते थे, लेकिन हमारी हाँ कोई इंटेंशन नहीं होती। मजेदार वाकयात हो जाते थे, हमारी कोई इंटेंशन हाँ, नहीं। तो मैं कह रही हूँ ना, ऐसे ही होता है। जेन्युइनली जी जी। हाँ माहौल जी जी। ऐसा था कि हम्म। किसी ना किसी बात पे हंसी भी आ जाती थी, और उसी बात पे कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था। और वही बात है कि हम चूंकि उस वक्त लड़कियां थे, तो हमें गुस्सा ज्यादा आया होता था, या हमें उस माहौल से निकलना ज्यादा होता था, ना कि हम जो है वो क्या कहते हैं, इंजॉय करते वो माहौल को। और बहुत ज्यादा चीजों में हम आई थिंक इनिशिएट भी नहीं करते थे, लेकिन मतलब हो जाती, बहुत सारी चीजें हो जाती थी कि हम लोग जो है ना छोटे छोटे वाकयात जो कि क्लास में आप कर सकते थे, क्लास फेलोज के साथ भी, टीचर्स के साथ भी, बाहर कॉरिडोर में भी जिस तरह के कोई वाकयात अगर हो जाते थे। लेकिन मतलब इनिशिएट मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत कम कोई मिस्टीरियस चीजें की हैं, करी है कुछ, लेकिन आई थिंक लेट्स जस्ट बी सीरियस टुडे। चले ठीक है। ठीक है, let's just move on. Then afterwards, I mean, like you graduated in 97 and then you went on for a master's in the state. I mean, like what was the thought process
first of all, and how was the family? The family was encouraging you, and कब ये सोचा कि यार I have to go outside and have to do masters? अच्छा, ये तो शायद मैं जब एडमिशन करने के लिए आई थी, जब ही मुझे पता था कि ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि मेरे घर वालों ने भी पढ़ा हुआ है, मेरे अब्बा पीएचडी थे, मेरी अम्मा ने भी मास्टर्स किया हुआ था, दो मास्टर्स किए थे, तो मेरा ये तो नहीं था कि एनईडी जो है वो आखिरी डिग्री होगी, ये नहीं पता था। ये पता था कि आखिरी डिग्री नहीं होगी, ठीक है ना, कि हमने आगे पढ़ना है, ये डन था, डन डील थी। उसके बाद जो है मैंने जाके थर्ड ईयर में ये प्लान करना शुरू किया था कि मुझे अब ये करना है सीरियसली। जो मेरा इंटरेस्ट था, जिस तरह की उस वक्त इंडस्ट्री थी, हमने कंप्यूटर सिस्टम्स में किया था। मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल साइड पर इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स से बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरा थ्योरेटिकल साइड में इंटरेस्ट होता है। जब जिस तरह की जॉब्स ऑफर हो रही थी वो बहुत शैलो थी, लाइक आप बैंक में जाके आईटी में काम कर सकते थे, या उस वक्त डेटाबेसेस नए आए थे तो आपके पास कोई ओरेकल की ट्रेनिंग टाइप के सेंटर में जाके काम कर सकते थे, या कुछ बेसिक ओरेकल डेटाबेसेस के ऊपर काम कर सकते थे। तो डेटाबेसेस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बैंकों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे नजर आ रहा था कि मेरे लिए यहाँ पर इस वक्त कोई काम मिलना जिसका मुझे इंटरेस्ट है वो नहीं होगा। तो थर्ड ईयर में मैंने शुरू कर दिया था यूनिवर्सिटीज की सर्च। वो इंटरनेट नहीं होता था, बहुत लिमिटेड, आपको कहीं ना कहीं से निकालना पड़ता था, अमेरिकन सेंटर जाके यूनिवर्सिटियों की लिस्ट निकालना, अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ अप्लाई करना है, वो करके फाइनल ईयर में जीआरई दिया था, और उसके बाद एडमिशन ले लिया था। तो मेरे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के फौरन बाद में चली गई। That's very nice. और बाकी जो उस वक्त का, जैसे आपने कहा कि भाई इट्स आपका पहले से ही प्रोसेस था माइंड में, तो फाइनेंशियली उसको कैसे मैनेज किया आपने उस वक्त? देखिए, थोड़ा सा फायदा हो जाता है औरत होने का। तो जब मैंने उन लोगों को लिखा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आ जाओगी तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बिकॉज देयर इज स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन इंजीनियरिंग। तो ठीक है, so you वो जो went चीज with a scholarship there, स्कॉलरशिप पे गई थी आप? बिल्कुल। तो फिर जब एडमिशन हो गया तो देखिए, मैं उसके बाद ही मैंने ये देखा है कि वो लोग आपसे इस तरह का कमिट करते हैं, यू हैव टू बी देयर एंड वील टेक केयर ऑफ यू, ठीक है। तो वो वर्ड आपको लेना पड़ता है, क्योंकि वो कोई आप चीज आपके लिए इसलिए नहीं कर देते कि आप बहुत अच्छे, क्योंकि आप ग्लोबली कम्पीट करके जा रहे होते हैं, आपने मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन So ये how was कि your GPA as in मतलब कैसे रेट करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने वाली थी, जीपीए बहुत अच्छा खासा था, या इट वाज आ एन ही एवरेज जाते थे, जीपीए? मतलब पहले 10 में, पहले 12 में आ ही जाते थे, आई थिंक। ओके, सो यू हैड अ डिस्टिंक्शन, ओके, हाँ, तो वो ठीक है। इस तरह आ जाता था। आई थिंक आखिरी साल में शायद 15वां 14वां नंबर था, लेकिन उससे पहले सही होता था। आखिरी साल मैटर करता था, उसमें हम उस लिस्ट में नहीं थे जिसमें मैटर्ड लोग थे, ठीक है। तो वो भी पता चल जाएगा आपको कि हम नहीं थे मैटर्ड लोगों में, लेकिन पढ़ लिख के हो जाता था। तो ये था कि उन्होंने मुझे उस जमाने में फिर थोड़ी ईमेल कॉन्वर्सेशंस भी शुरू हो गई थी। एसएनडीपी का अकाउंट होता था, तो उस पे मैं एसडीएमपीके के अकाउंट से ईमेलें वगैरह करके उनको बता के मैं आ रही हूँ, मेरे ये जीपीए ये वो, तो मुझे ये गारंटी उन्होंने दे दी थी कि यू कम इन, मीट अस, वील अरेंज द फाइनेंशियल्स फॉर यू। तो वो बात हो गई थी। दूसरी बात ये कि अप्लाई भी मैंने एक ही जगह किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, क्योंकि अगेन इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि हम वो $60 क्रेडिट कार्ड होता नहीं था, कहीं से जाके करवाना पड़ता था। तो वो बैंक ड्राफ्ट पता नहीं क्या क्या वो करके, या पोस्टल कार्ड पता नहीं क्या, तो बहरहाल वो $60 के होते थे, उसमें $60 बहुत लगते थे। और ये नहीं किया, एक ही जगह अप्लाई किया, उसकी पूरी मैंने मतलब एक एक क्वालिफिकेशन मैंने कहा मैंने ये फिल करना है, ऐसे ऐसे लिखना है, ये करना है, वो सब करके हो गया था। जब मैं वहां पहुंची तो अगेन पता चला कि मैंने क्या किया है, क्योंकि पहले जाने तक तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। जब मैं पहुंची तो मुझे पता चला होम सिकनेस क्या होती है। मुझे पता चला कि आदमी को जब अपना सूटकेस, ट्रॉली बैग्स नहीं होते थे उस जमाने में, अपना सूटकेस खुद उठा के इधर से उधर ABC ले जाना, ट्रॉली बैग नहीं है आप यहाँ, आप अपना सारा सामान उठा के ले आए हैं, किताबें भी कुछ ले आए हैं कुछ, तो वो 2 सूटकेस उठा के जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खैर, जब मैं वहाँ पहुंची और मैं एडमिशन ऑफिस गई और मैंने उनसे सारी बातचीत की, तो उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, उन्होंने कहा फिल करो, विल मेक श्योर। तो मुझे मिल गई थी स्कॉलरशिप, पहले साल में स्कॉलरशिप थी, और जिसका स्टाइपेंड था, फीस प्लस स्टाइपेंड बहुत अच्छा, मुझे मिलते थे कोई $1200 महीना, और जिसमें मेरा रहना ये खाना बात है पीना सब 97 98 की? 97, ठीक है। नाइस। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप थी, वो थी भी, और लड़कियों के लिए और विमेन इन इंजीनियरिंग के लिए थी।
फीस प्लस ये, और फिर मुझे सेकेंड ईयर में जाके मुझे टीए करना था, लाइक पढ़ाना था। तो वो मुझे पढ़ाने का शौक हमेशा से था, तो मुझे कोई उसमें मसला नहीं था। पहला साल आराम से गुजर गया, पढ़ लिया, सेकेंड ईयर पढ़ा दिया पढ़ाई के साथ। चलो सही। उसके साथ साथ वहां पे मतलब कोई इस तरह की एक्टिविटीज रखी हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, क्योंकि जैसे आपने कहा आपको स्टाइपेंड मिल गया था, तो ऑड जॉब्स वगैरह तो ऑब्वियसली आपने नहीं की होंगी, तो मैंने भी किस तरह की हाँ, एक्टिविटी किस तरह की एक्टिविटी रही थी फिर, मतलब टाइम ये किल मेरी किस तरह होता था, या मास्टर्स में बिल्कुल बिजी थी, किस तरह से था? ये एक्सटेंसिव होता है। देखिए हम हम्म। हमारे यहाँ जो है ना, वो जिस तरह की इंजीनियरिंग कराई जाती है वो अच्छी तो है, कंपेरेटिव भी होती है, लेकिन ये कि जो बेसिक होती है वो हमारी बहुत खराब होती है। लाइक जब आप मास्टर्स करने जाते हैं, और स्पेशली मैंने जो एरिया चूज किया था डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का, उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी मैथ्स, मेरा अपना ख्याल था कि बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची और मैंने जब वो कोर्सेज लिए, और मेरा ख्याल था कि ये तो मैं आराम से निकाल दूंगी, लेकिन मेरा वहाँ पे पहले सेमेस्टर में बी प्लस से ज्यादा आ नहीं रहा था, क्योंकि पर्सनल चैलेंजेस भी होते हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होता कि यार ये इतना सारा मैथ्स आ गया इंजीनियरिंग में अचानक से, और इसको कैसे पढ़ना है। तो वो पहले सेमेस्टर में तो मेरी कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। बहुत मुश्किल था, मतलब ऐसा लगता नहीं था कि ये जिंदगी मुश्किल होगी। मैं पहले अमेरिका जा चुकी थी सैर तफरी के लिए, तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, लेकिन वहाँ पढ़ने में मुझे लगा कि मुश्किल है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, आई थिंक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उस वक्त था भी शायद नंबर 3 नंबर 4 प्रोग्राम दुनिया भर में, तो वो और ही क्लास के लोग थे वहाँ पर, जो कि कर सवाल कर रहे हैं, और हमें पहले से दूसरी लाइन पे नहीं जाया जा रहा, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर आपको प्रोफेसर भी लिफ्ट नहीं करा रहे, क्योंकि आप आपसे सवाल सही से हल नहीं हो रहे हैं। फिर आपने ऑफिस आवर्स में जाना है, उनसे समझना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। मतलब मुझे लगता नहीं था सो कि यू इतना फेल्ट रियली चैलेंज कि डिफरेंस इन एजुकेशन है? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा था। ओके, सो इसमें कोई एडवाइस करेंगे जो ऑडियंस देख रहे हैं, जो स्पेशली यंग गर्ल्स जो ड्रीम कर रही हैं कि यार वी हैव टू गो ओवर देयर फॉर स्टडी, तो कुछ एडवाइस करेंगे कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए? देखिए आजकल तो वैसे इट्स क्वाइट इजी टू रिसर्च अबाउट द कोर्स इटसेल्फ एज वेल, आपको पता बिल्कुल होता है कि आपने कौन कौन रिसर्च, से कोर्स पढ़ने हैं। यस। हाँ बिल्कुल रिसर्च करना भी आसान है, और दूसरी बात ये है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाती है जो आपको कुछ समझा देती है, उसकी बेसिक्स भी करवा देती है। तो बहुत सारी रिसोर्सेज आपको एक्सटर्नल मिल जाती हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि आपको अपनी बेसिक्स सही कर लेनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि हमारे ज़माने में भी कोई टीचर्स बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे, और अभी भी नहीं पढ़ा रहे होंगे वहाँ पर, लेकिन ये कि उसको बेसिक को समझ लें। लाइक मैथ्स इज इम्पोर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग, स्पेशली इफ यू वांट टू डू एमएस नाउ, क्योंकि अब इसमें जो ज्यादातर है वो थोड़ा थ्योरेटिकल काम आ जाता है, स्पेशली मेरी फील्ड में तो था, और मेरा ख्याल है कंप्यूटर साइंस में भी आता है, और एरियाज में भी आता है। तो पढ़ लेना चाहिए बिल्कुल। और ये कि मतलब इमरान खान की तरह मैं कहूँगी कि घबराना नहीं होता, लेकिन घबराहट होती है। ओके, चले सही है, गुड। लेट्स मूव ऑन। उसके बाद स्टडी के बाद रुके नहीं, नॉर्मली दिस इज मतलब बहुत डिफरेंट केस होता है, बिकॉज जो भी मास्टर्स करता है वहाँ पे उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, द सेम कंट्री वो प्रेफर भी कर रहे होते हैं और वो इनकरेज भी कर रहे होते हैं, बट यू केम बैक, आई एक कैम बैक, पर्टिकुलर रीजन मैं था, बताती फैमिली हूँ। रीजन था, या किस तरह का रीजन था? नहीं, फैमिली रीजन तो कोई नहीं था, क्योंकि कोई मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं वापस आऊंगी। हम्म। एक वजह, दो रीजन थे। एक तो ये था कि मेरी जो जॉब हुई थी वो लॉकहीड मार्टिन में हुई थी, मेरे डीएसपी के काम पे। तो लॉकहीड मार्टिन डज अ लॉट ऑफ वॉरफेयर वर्क, ठीक है। तो वो यस, वॉरफेयर इमेजिंग थी, और वो था भी काम मेरा। आई बिलीव नंबर मैंने 1 या नंबर 2 कंपनी लॉकहीड मार्टिन, तो बिल्कुल आर्म सप्लाई की इन द वर्ल्ड, आई थिंक नंबर आर्म से 1 ही है, आई सप्लाई बिलीव करते ये। हैं, और उस जमाने में उन्होंने वो इमेजिंग वाला काम शुरू किया था। तो हम्म। उनको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लोग चाहिए होते थे, और मुझे बहुत अच्छी आती थी, तो वो मुझे हम्म। जॉब मिल गई थी। मैं वेरी साइन नाइस। अप करके सब कुछ आ गई। हम्म। बहुत ही ट्रेजिक बात है कि ये आई थिंक फरवरी 2019, सॉरी फरवरी 1999 की बात है, कि मैं वापस आई। फरवरी या मार्च की बात है, तो और उसी सोफिया, जमाने ये में अच्छा नहीं होता कि आप वहां पे जॉब करती 3-4 साल एक्सपीरियंस लेती फिर वापस आती, मे बी यहाँ पे कुछ ये हो सकता टेक्नोलॉजी था। ले आती हैं आप? अच्छा मैं बताती हूँ, मैं वापस हम्म। मैं थोड़ी हम्म। सी एक्टिविस्ट टाइप की भी औरत हूँ। तो जब मैं हम्म। वापस आई, तो मेरी एक दोस्त थी जो कोसोवो से थी,
और उसने मुझे बताया कि उसके घर पे बमबारी हो गई है, और हम लोग यही बातें कर रहे थे कि यूएस वाज इन्वॉल्व उस जमाने में ना, जो सर्बिया यस, जो यूगोस्लाविया। कोसोवो थी, यस, हाँ यूगोस्लाविया के अगेंस्ट यूगोस्लाविया में। थी, यस। कोसोवो में की हुई थी वॉर। तो मैंने कहा यार मैं तो यही काम कर रही होंगी वहां पर, कि हम जो है वो कह रहे होंगे ये इमेज इधर मारना है और उधर मारना है। तो मैंने कहा मैं ये नहीं करी, तो मैंने ओके। लॉकहीड मार्टिन को तो लिख दिया कि आई एम सॉरी मैं नहीं ज्वाइन करी। इसके अलावा मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी जीई लाइफ के साथ, जो कि अल्ट्रासोनिक मशीन और इसके ऊपर काम, अल्ट्रासाउंड, हाँ अल्ट्रासोनिक मशीन और अल्ट्रासाउंड, सॉरी मेडिकल अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स में। मशीन यस। यस। मेडिकल इक्विपमेंट से करते थे, लेकिन उनको कोई, वो लोग अजीब तरह के अमेरिकन आपसे मजाक के बहाने करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जरा यू विल नॉट बी हैप्पी विद अस। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। वो जमाना था 99 और 2000 का, जब डॉट कॉम बूम पे था, लेकिन बस्ट नहीं हुआ था, बूम चल रहा था और सारी दुनिया में जॉब्स बहुत थी। तो मैंने कहा कि ठीक है ऐसा है तो अपने मुल्क चले जाते हैं वापस। तो और मेरे कुछ दोस्त थे जो कि इंडिया से थे या इंडिया से थे और यूरोप से थे, वो भी अपने मुल्क वापस जा रहे थे, क्योंकि तो मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं। लेकिन मेरे साथ और कोई जो और पाकिस्तानी, यूनिवर्सिटी मिशिगन में नहीं थे, लेकिन और इंडियन जिनसे मेरी बात होती थी वो कोई भी वापस नहीं जा रहा था, सिर्फ मैं। तो मुझे मुख्तलिफ काम करने का शौक है, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैंने बात करी थी, मेरे यहाँ पे बॉस होते थे समीर उल बॉय साहब, जिनकी यहाँ कंपनी है डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल्स। तो मुझे उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया था, और उन्होंने यहाँ पे हमदर्द के साथ हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोला था। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, तुम पढ़ा लेना डीएसपी। तो फिर मैं आ गई, मुझे पढ़ाने का भी शौक था। मैंने कहा चलो जॉब तो है, लेट्स गो सी कि क्या होता है, अपना मुल्क है, विल सी, कुछ नहीं होगा तो फिर निकल जाएंगे। श्योरली। आफ्टरवर्ड्स काफी लंबा पीरियड आपने गुजारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मतलब बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के अंदर भी रही हैं। तो ये एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? आई बिलीव टिल 2017 आपने काम किया है इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। 2018 तक मैंने काम किया, 2018 तक, यस। और ऑलराइट। 2018 सो तक मैंने काम वॉक किया। अस थ्रू दिस प्रोसेस। ये 15-18 साल का काम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरह से कूप अप किया, और मैनेजमेंट लेवल्स वगैरह पे किस तरह पे गई? थोड़ा सा अच्छा, ब्रीफ कीजिए ऑडियंस को। अच्छा मैं बताती हूँ। मैंने एज आई टोल्ड यू कि मैंने आके हमदर्द यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी। पढ़ाने का मुझे शौक था, मुझे लगता था कि शायद मैं सारी जिंदगी पढ़ा सकती हूँ, रिसर्च भी कर सकती हूँ, और शायद किसी वक्त जाके पीएचडी कराऊंगी तो पक्का एकेडमिक करियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने रख तो लिया, लेकिन वो मुझे पूरी फैसिलिटीज नहीं दे रहे थे पढ़ाने के लिए, और स्टूडेंट से पैसे तो भर भर के लेना शुरू हो ही गया था, वो जमाना था। तो 99 2000 बल्कि 98 97 से ये शुरू हो चुका था कि स्टूडेंट अब पैसे देगा और कोई और तो पैसे देगा नहीं। तो मेरा वहां पे झगड़ा हुआ उनसे कि आपने मुझे फैसिलिटीज देनी है, और मैं इंसिस्ट करती रही। तो एक दिन ये हुआ कि उन्होंने मुझे लेटर भेज दिया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो गया है। अच्छा जी, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब क्या करें? फिर मैंने कहा कि अब जरा सा कुछ पर डीएसपी की तरफ दोबारा जाते हैं और कुछ सीरियस काम करने की तरफ कोशिश करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा अपना ग्रुप बना के उस पर पढ़ना शुरू किया। इंटरनेट था अवेलेबल, तो और चीजें कि नई रिसर्च क्या हो रही है, चलो हम कुछ रिसर्च का काम शुरू करते हैं। कुछ एक दो स्टूडेंट्स भी एनईडी के लिए इधर उधर कॉन्वर्सेशंस करके कुछ शुरू किया। उस वक्त फिर एक ऐसे ही अखबार में इश्तिहार आया, एक कंपनी थी वेव सॉफ्ट, उसका आया कि उनको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह चाहिए। बड़ी पोस्ट थी, क्योंकि मैं समझती थी कि मैंने मास्टर्स कर लिया तो मुझे बड़ी पोस्ट ही मिलनी चाहिए, नॉट जस्ट द डेवलपर। तो मैं गई वहाँ पे, मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि यू आर बेस्ट सूटेड फॉर वेव टेक। तो फिर मैं जाके अहमद फराज साहब से मिली, वेवटेक में मेरी जॉब हो गई, मैं वहाँ पे काम करती रही, 2 साल मैंने वहाँ पर काम किया। लेकिन वो जो मेरे शुरू के बीएसपी वाले आइडियाज थे उनके ऊपर मैं काम करती रही कि हम किस तरह से करते हैं। हमने देख केबल, फाइबर केबल डलने लग गया था पाकिस्तान में, मल्टीनेट आ गई थी और भी कंपनीज थी, वर्ल्ड कॉल था वो डाल रहा था। तो हमने कहा चलो इसमें कोई काम निकाला जा सकता है। 2002 में तकरीबन 2 साल काम करने के बाद मैंने वहां से रिजाइन दिया, और मैंने कहा मैं अपना थोड़ा सा काम शुरू करती हूँ, providing consulting to these companies who were doing fiber, who were doing fiber infrastructure basically. तो मल्टीनेट से दोस्ती थी मेरी सीईओ से, तो मैंने उससे जाके बात की, हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मिला, काम भी करने लगी। फिर
फिर ये हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मैंने कहा चलो साइड में हम काम करते रहते हैं। मैं करती रही, फिर मेरी बेटी पैदा हुई। बल्कि मैंने उस वक़्त फ्रीलांस काफ़ी काम किया एक्चुअली, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी किया था जिसमें कि मैंने पूरी अपनी डीएसपी यूज़ की, टेक्नोलॉजी इमेज प्रोसेसिंग की। आई थिंक नेटवर्किंग थोड़ी करनी पड़ती है, तो वो आपको अपने कनेक्शंस में इधर-उधर ढूँढना पड़ता है। और लेकिन अब इंटरनेट की वजह से बहुत आसानी है। उस वक़्त भी हो गई थी कि आप किसी से जाके बात करेंगे, मैंने ये किया है। कोई एनईडी वाला वहाँ काम करता है या आपका सीनियर You're जूनियर emphasizing कि connections really are really important in बिल्कुल, the business बिल्कुल, world. Yeah. बिल्कुल। तो कनेक्शंस होते हैं, आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है। कभी हेसिटेट ना करें किसी से मिलने के लिए। जाएँ, नॉर्मल कन्वर्सेशन करें, अपना अपना काम छुपाएँ नहीं, अपने काम को कभी मेरी भी आदत है कि मैं अपने काम को कम बताती हूँ कि यार ये कम किया है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें मैं आपसे तो एक सवाल करता हूँ। आपने जनरली पढ़ाया भी है 2 साल 2002 और 2003 में, जैसे आपने कहा। यूनिवर्सिटी जो हमारी है एनईडी, इसमें बच्चे हेजिटेट बहुत होते हैं इन टॉकिंग। मेरे ख्याल से ये इंप्रेशन सही है? ये हमारे ज़माने में सही नहीं था मतलब सब बात हम्म, करते थे, सब वो करते हम्म, थे। आई हम्म, थिंक ये जो रिप्रेशन आया था ना, जो वो वीसी थे आपके अबुल कलाम साहब, उन्होंने काफ़ी हम्म। कोशिश की थी कि एक तो सारे शहर में भी हो रहा था, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि ना बस अब इसको स्कूल बना दिया जाए। ठीक है? तो एनईटी एक स्कूल बन गई। हमारे ज़माने में नहीं, स्कूल नहीं बनी थी। मैं स्किल वाइज बात कर रहा हाँ, हूँ कि मैं ठीक है। देखता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स जो है थोड़ी बच्चों की वैसे नहीं होती जैसे इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इटसेल्फ जो नेटवर्किंग है, आई मीन लाइक हु कुड नो बेटर। मैं सेल्स में हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए नेटवर्किंग ही है कि हाउ आई एम कनेक्टेड टू द पीपल एंड आई एम कीपिंग द बिल्कुल। कनेक्शंस विद द पीपल। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। सो इट्स ऑल वर्क टुगेदर। तो इसमें इसमें आप कैसे एडवाइस देंगे इनको कि भाई हाउ टू कीप कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री? देखिए, वन टू वन कनेक्शंस के लिए तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं चाहिए होती। आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स की जब लोग मतलब आपको बेसिक तमीज़ आनी चाहिए, आप अपनी बात कर सकते हो, दूसरे की बात सुन सकते हो। इतना ही चाहिए होता है मेरा ख्याल है। लेकिन अगर आपको कहीं प्रेज़ेंटेशन देनी है या कहीं देना है, उसमें चैलेंज होता है, इंजीनियर्स को होता है कंपेयर टू मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, जिनको सिखाया यही जाता है कि हाउ टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ। ये कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट भी होता है, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, तो पर्सनैलिटी के हिसाब से आई थिंक लोग काम करते हैं। लेकिन अगर आपको ये मतलब एक माहौल भी होता है कि ना, अगर आप ये समझते हो कि यार मैं कोई भी बात कर सकता हूँ और कह सकता हूँ विदाउट एनी रिपरकशंस ऑफ इट, एक लिमिट के अंदर, ये नहीं कि आप कोई भी बात करते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर, मेरी ये लिमिट इसके अंदर मैं कोई बात कर सकता हूँ विदाउट बीइंग विक्टिमाइज्ड फॉर इट, तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप ठीक है। स्कूल बना देंगे तो नहीं आता, मतलब 18 साल के बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। Surely. So in that case, I mean, like आपके केस में जो है, आपने कहा नेटवर्किंग के थ्रू you got some freelance projects during your pregnancy time and all that time. So that was basically your personality traits, जिसको आपने मतलब सोचा नहीं होगा पहले कि भाई मैं इस वजह से मैं ये करूंगी, लेकिन क्योंकि एक चीज डेवलप थी आपके अंदर, नेटवर्क्स थे, कनेक्शंस बने हुए थे, so you use that in that time. नेटवर्क्स भी, और आई थिंक मैंने ये सोचा हुआ था कि मुझे किसी चीज के लिए रुकना नहीं है। मतलब मुझे पता नहीं क्यों अभी भी ये लगता है कि रुकना नहीं चाहिए। तो पर ये था कि अच्छा ये नहीं हो रहा ना अभी, मतलब मैं आज घर पे क्यों बैठी हुई हूँ। आई नीड टू गो हम्म। आउट, डू समथिंग, फाइंड समथिंग। मतलब एक कोई चीज मुझे पुश करती है, मुझे नहीं पता मैं क्यों जिस्तजू पुश करती हूँ। कोई जिस्तजू होता है Yeah. कि Okay. जाओ अभी ये काम करो, क्यों घर में बैठती हो ये हो। Very तो nice. लिटरली मेरी बेटी पैदा हुई, 4 महीने के अंदर मैंने काम ढूंढा। मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती घर में बैठने वाला, तो मैं जा रही हूँ मैंने जियो का दोबारा वही केबल वाले इस काम से शुरू किया। जियो का जंग ग्रुप केबल डाल रहा था, जियो नहीं, मतलब जियो तो टीवी चैनल था, लेकिन जंग ग्रुप केबल डाल रहा था। तो आई जॉइन दैट टीम। 3-4 महीने वो काम किया। फिर वेवटेक वालों ने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी है कंसल्टिंग की, टेक दैट अप। उन्होंने कहा कि this is a foreign funded project, so come over, do the project. They were part of it from the supplier perspective. They said you join the team, do the consulting overall, and I think that gave me break, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे और हार्डवेयर फोकस्ड काम करती थी। लाइक मेरा वेवटेक में भी सारा काम मेरा एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर था, उस साइड पे फोकस हार्डवेयर। मुझे हमेशा से अच्छा लगता है काम करना मोर देन सॉफ्टवेयर। तो मुझे बहुत बड़ा ब्रेक मिला 2005 में, जब मुझे वेवटेक ने कहा कि यू जॉइन दिस। तो मैं चली गई उस कंपनी में अगेन।
आई वाज मीटिंग ऑल द कोरस और मैं उनके साथ बात करती थी कि अच्छा मेरी हाँ ये है ये अच्छा हाँ हो जाएगा ठीक है अब कुछ करेंगे हम। एक मुझे ये फेथ है कि काम हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बेसिक्स आती है तो मैं कहती हूँ हाँ काम हो जाएगा, ये मैं गारंटी देकर आती हूँ। और दूसरा ये कि मुझे कोई चीज ड्राइव करती है कि जाओ ये करो, मतलब घर में क्यों बैठी हुई हो ना, या ये क्यों मतलब व्हाई यू आर सो इनएक्टिव एट दिस पॉइंट। तो ठीक खैर है। मैं मुझे वहां मिल गया और दैट वाज अ सो बिग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट। कंसल्टेंसी पीरियड, मतलब एक छोटा सा काम आपको एज अ बिजनेस आपने रन किया, लेकिन फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दोबारा कंटिन्यू किया, क्या वजह थी? और मैं उसमें फिर इसी कैसे में फ्लरिश किया किया, आपने? मैंने इसी में कंसल्टिंग टर्न्ड इनटू फुल टाइम जॉब देयर क्योंकि हम्म। हमने वो सेटअप की थी। अब मैं बात कर सकती हूँ नहीं मेरा ख्याल है छोड़ देते, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें हमने 5,000 पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स लगाए थे अक्रॉस पाकिस्तान। हम्म। उसका टर्मिनल्स का सारा डेटा लेकर आना, बैक एंड सेटअप करना, नेटवर्क सेटअप करना। सो आई गॉट टेलीनॉर द मनी की फुल। बात कर रही हैं आप? नहीं टेलीनॉर नहीं, ये ओके। किया था मैंने पीओएस सेटअप किए थे। एक ओके। हीरो पाकिस्तानी के नाम से एक स्कीम चली थी पाकिस्तान में, हम्म। स्पोर्ट्स की स्कीम जिसमें लोग कार्ड खरीदते थे और वो हम्म। अपने नंबर डालते थे और फिर वो दे यूज्ड टू विन बिग मनी आउट, यू नो, सो इट्स ओके। काइंड ऑफ अ रैफल ड्रॉ टाइप चीज थी, स्कीम ओके। थी। उसका ओके। पूरा एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी नेटवर्क, बैक एंड, फ्रंट एंड, पीओएस, आई वाज डायरेक्टर हार्डवेयर। टेक्नोलॉजी, आई वाज ऑल ऑफ ओके। दिस हार्डवेयर, एक ओके। एक चीज। So I did everything there. I started with consulting और उसमें बाकी सारे like So you were actually marketing। designing the hardware and developing the hardware and manufacturing the नहीं, hardware also, I or was how was just it? Hmm. I was specifying everything. So like Okay. specifications of the Hmm. hardware, ये hardware बेफ्टेक ने प्रोवाइड किया था, लेकिन स्पेसिफिकेशंस एंड ऑपरेशंस, तो मेरा बहुत ज्यादा ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस हुआ। और नेटवर्क साइड पे हमने सेल्यूलर नेटवर्क से कोऑर्डिनेशन हुई। उस वक्त मोबिलिंक था, अब जैसे मोबिलिंक के साथ और टेलीनॉर साथ डुअल सिम पीओएस सिस्टम्स लगाए थे हमने 5,000। और उसके बाद उनका डेटा लेकर आना, और उस जमाने में मैंने उसको गूगल मैप से इंटीग्रेट भी कर दिया था 2006 में, क्योंकि हमें टाइम लगा था Nice. रोल आउट करने में। 2006 में वो गूगल मैप की एपीआईज लेकर और उसके ऊपर इंटीग्रेट कर दिया कि ये कहाँ से आ रहा है डेटा, एवरीथिंग, रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, real time reporting, real time alerts, everything was built in those days, जो हमने बनाया था। फिर हुआ ये कि वो कुछ लिटिगेशन में चला गया वो बिजनेस, लेकिन अगेन मेरे कॉन्टैक्ट्स थे टेलीनॉर में भी और मोबिलिंग में भी। तो टेलीनॉर ने मुझे फॉरन ऑफर की, दे सेड कि स्ट्रैटेजी में पोजीशन है, आई मीन दे काइंड ऑफ लेट मी इन कि ये स्ट्रैटेजी वाली पोजीशन है, कम ज्वाइन। तो मैं वहाँ गई और 2-3 अच्छे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स मुझे मिले फ्रॉम स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव। उनमें से एक जो था वो इजी पैसा की स्ट्रैटेजी था और मैंने वो किया। और मेरी ये जो यहाँ वाली जो टीम थी, जो जर्मन और यूके वाली टीम थी हीरो पाकिस्तानी की, वो जब तक जा चुकी थी पाकिस्तान से। लेकिन फिर ये हुआ कि उनमें से जो मेरा बॉस था जर्मन, जो कि यहाँ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था, उसने एक दिन मुझे कॉल किया और उसने कहा कि सोफिया तुम्हारे लिए यहाँ एक पोजीशन है, तुम अप्लाई करोगी? तो मैंने कहा कि अच्छा कर देती हूँ। उसने कहा मैं तुम्हारा इंटरव्यू करवा दूँ आज, मैंने कहा अच्छा करवा दो। तो अच्छा ये सब बातें तो मैंने कर ली। अब मैंने कहा अच्छा घर आके मैंने कहा ये जो मेरा मियाँ बैठा हुआ है इसको मैं क्या बोलूँ। तो मैंने उससे कहा कि यार Where was the job? Where was the job? In UK or in Germany? या म्यूनिख, पाकिस्तान में? म्यूनिख, म्यूनिख। म्यूनिख में। Okay, Germany. Yes. हाँ, तो उसने कहा म्यूनिख आना होगा। मैंने कहा अच्छा हाँ सही है करवाओ। तो मैं टेलीनॉर में थी, उसने मुझे, मैंने कहा अच्छा घर आई, मैंने मौका ढूंढा। अच्छा मैं घर का काम हम लोग बराबर बराबर शेयर करते हैं, तो मैं मियाँ किचन में कोई काम कर रहा था, मैंने उससे जाकर कहा कि सुनो मॉलगर का फोन आया था, वो कह रहा है कि जर्मनी में जॉब है तो मैं कर लूँ। तो उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, और मेरी बेटी का नाम तारा है, उसने कहा तारा को भी ले जाओ, उसके लिए भी बहुत बड़ा चेंज होगा, तो गो डू इट। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने पहले ऑनलाइन लिया, टेक्निकल इंटरव्यू एवरीथिंग। फिर उन्होंने कहा कि आप एक दिन के लिए जर्मनी आ सकती हैं। मैंने कहा टिकट भेजे मैं आ जाती हूँ। फिर वीजा वगैरह करके फिर फ्राइडे को मैं गई, मैंने हाफ डे लिया फ्राइडे का टेलीनॉर से, मैं गई सैटरडे को इंटरव्यू दिया, संडे को वापस आ गई। और फिर उन्होंने मुझे ऑफर कर दी। फिर मैं और मेरी बेटी चले गए जर्मनी। हम वहाँ पहुंचे 2008 में था। जर्मनी में काफी टाइम लगता है सेट होने में,
मतलब उनका पेपर वर्क एक लेंदी काम है। खैर एनीवेज, पहले बच्ची के लिए स्कूल ढूंढो, अपने लिए घर ढूंढो, सब काम कर करा के लाइक अगस्त में पता चला, म्यूनिख में अगस्त में काम शुरू किया। अक्टूबर में 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया और ये इकोनॉमी ज्यादा हर्ट होती है। वो प्रोजेक्ट जिसपे मैं आई थी वो बंद हो गया। अच्छा, Okay. जर्मनी के रूल्स बहुत अच्छे। एम्प्लॉयमेंट से ऐसे आपको फ्रॉम वन डे टू द अदर नहीं निकाला जा सकता। तो 2000 और मेरी काफी हाई पे थी, मैं एक एक्सपेट की तरह वहां पे जिंदगी गुजार रही थी, बहुत आराम की, बहुत आराम। म्यूनिख में लग्जूरियस काइंड ऑफ लाइफ थी, ठीक है। गाड़ी भी दी हुई थी उन्होंने और पैसे भी अच्छे थे। बेटी को भी मैंने इंटरनेशनल किंडरगार्टन में डाल दिया था, इतने पैसे थे मेरे पास। तो मैंने कहा अच्छा अब क्या, तो कुछ ऐसे ही भर्ती का काम आ रहा था। फिर मैंने कहा कि अब क्या किया जाए। फिर अच्छा उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, तो अभी तो हम 5-6 महीने हुए थे। तो उन्होंने कहा कि वो वो मुझे कहना चाह रहा था कि हम तुम्हें उस मई तक के पैसे दे देंगे। मैंने या नहीं, नवंबर तक के पैसे देंगे, अगले साल तक के पैसे दे देंगे, और बट दे वोंट बी वर्क, क्योंकि वो इस तरह से निकाल नहीं सकते इतनी आराम से, स्पेशली उनके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है निकालने में। तो वो मैंने उससे पता नहीं क्या निगोशिएट करके ना मैं मई तक का कह के आ गई। मतलब मैं अपनी तरफ से बहुत खुश थी, लेकिन मुझे बाद में ख्याल है कि वो मुझसे कह रहा था अगले साल नवंबर तक, और मैंने आगे 5-6 महीने तक था। मैं बाद में ख्याल है कि वो तो 1 साल कह रहा था और मैं उससे समझ रही हूँ ये नवंबर कह रहा है, अभी नवंबर में हम बैठे, मैं कैसे, मैंने उसको खैर। सो फिर मैंने जॉब सर्च शुरू की। अब मैंने कहा कि मई तक का टाइम है, जॉब सर्च शुरू करते हैं। मुझे जबान नहीं आती थी। मतलब एक आप मुल्क को लोग टेररिस्ट के तौर पे जानते हैं, आप औरत हैं, आपके ऊपर मतलब जबान नहीं आती है, क्या करेंगी, क्या कर सकती हूँ मैं। मतलब मैं बहुत, मेरे पास एक एक्सेल शीट थी जिसमें कि कंपनियों के नाम थे। जॉब्स बहुत निकलती हैं जर्मनी में टेक्निकल। अब मैं लिख रही हूँ, इसको मैंने इस दिन अप्लाई किया, इसका रिस्पॉन्स आया नहीं आया, इधर ये वो, मेरे पास एक कोई 60-70 अगेन लिस्ट थी मेरे पास। मैंने वो शुरू की। फिर मैंने एक मुझे डॉइचे टेलीकॉम से ऑफर मतलब कॉल आई। मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ। मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे जॉब दे दी प्रोडक्ट मैनेजर की। मैंने कभी प्रोडक्ट मैनेजमेंट की नहीं थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की थी या ऑपरेशंस देखे थे या टेक्नोलॉजी इस तरह से देखी थी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं की थी। थोड़ा सा पढ़ लिया प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है, इंटरव्यू क्लियर हो गया, चली गई वहाँ पे काम किया। 3.5 साल वहाँ पे काम किया, बहुत मजा आया, बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि अगर दुनिया में कोई रहने के लिए मुल्क है तो वो जर्मनी है। मतलब कोई और जगह इतनी क्या कहना चाहिए, लोगों प्रो पीपल, के लोगों का ख्याल रखने वाली और लोगों को इज्जत देने वाली लोग और itself are very kind actually वहाँ पे। बहुत जनरल बहुत इंटरेक्शन बहुत अच्छा है लोगों का। मतलब मैंने सिंगल एज अ सिंगल मदर, क्योंकि मेरे मियाँ तो यहाँ पर था और कभी कभी आता था, लेकिन ये कि एज अ सिंगल मदर मैंने वहां पर ही सीखा कि कितना, मतलब मेरी अगर मुझे कहीं ट्रैवल के लिए वो भेजते थे तो वो मेरी बेटी के लिए एक बेबी सिटर भी दे देते थे मुझे, कि वो आके वो सारे काम उसके कर देगी जो मैं करती हूँ। लाइक घर पे आके उसको स्कूल ले जाएगी, खाना खिला देगी, और जब मैं वापस आऊंगी तो वो सो रही होगी, तो सारे काम वो करके देते थे। तो वो था। फिर दोस्त भी बहुत अच्छे बने वहाँ पे, मतलब अभी तक मुझे वो सारे दोस्त याद आते हैं। बहुत ही मतलब फिर आप एडवेंचर करते हैं वर्क मतलब कल्चर का उसका मुझे बताइएगा, क्योंकि आई ऑल्सो वर्क इन अ जर्मन कंपनी। मुझे तो आइडिया है, लेकिन ऑडियंस को बताएं कि हाउ इज द वर्क कल्चर स्पेसिफिकली द पीपल वर्किंग इन जर्मनी। उस मुल्क में प्रोसेस हर चीज है, ठीक है। अगर आपने प्रोसेस फॉलो कर लिया दैट्स इट। एक तो ये है कि प्रोसेस है, तो मतलब जैसे और जगहों पर होता है कि आप कस्टमर सर्विस इज इम्पोर्टेंट, राइट? नहीं, अगर मुझे 3 हफ्ते के बाद अगर कनेक्शन मिलना है इंटरनेट का तो वो 3 हफ्ते के बाद ही मिलेगा। वो उससे पहले कोई तरीका नहीं है कि उसको स्पीड अप किया जाए। मैं म्यूनिख से बॉन पहुंची, मैं उनसे कहती रह गई कि भाई मैं ट्रांसफर करवा रही हूँ म्यूनिख का कनेक्शन इधर, मतलब आई एम सेम डीटी कस्टमर, आप कर दे। उन्होंने नहीं, 3 हफ्ते होंगे, 3 हफ्ते होंगे, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो काम जो है ना वो प्रोसेस है। और काम अगर आपने 9 से 6 करना है या 9 से 5 करना है, जो भी आपके ऑफिस आवर्स है,
वो आपके ऑफिस आवर्स काम के हैं। मतलब वहाँ पे लोग आते थे 8:45 आके खिड़कियां विड़कियां खोली, क्योंकि एक तो फ्रेश लुफ्ट का बहुत ख्याल होता है लोगों को कि फ्रेश एयर आए, तो वो खोलते हैं चाहे -20 चल रहा हो बाहर का, खोलेंगे अपनी मग वग लेकर आएंगे, कंप्यूटर ऑन करेंगे, 9 बजे दे आर वर्किंग। मतलब ये नहीं है कॉन्सेप्ट कि मेरा 9 बजे का टाइम है तो मैं जरा 9:15 9:30 आऊँ और फिर मैं खाना खाने और जाऊँ, ये एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि बीच में जो लंबी लंबी ब्रेक्स हमारे कल्चर में ना, कि कॉफी के लिए उठ के चले गए तो लंबी बातें कर रहे हैं या बैठे हुए हैं गप्पे लगा रहे हैं, नो, इट्स नॉट देयर। नहीं, नहीं, देखिए उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक बनी हुई है। मेरी बेटी ने भी वहाँ पढ़ा ना, तो उसके भी हम्म। दिमाग में उन्होंने यही डाल दिया था कि क्लॉक हम्म। चलती रहती है सारा वक़्त ना। तो होता ये है एब्सोल्युटली। कि अब लंच के लिए, मतलब अगर लंच जाना है तो 12 से 1 लंच करते हैं, या कोई भी टाइम जो भी है, तो 15 मिनट पहले से ना शुरू हो जाता है। अच्छा कौन-कौन लंच पे जा रहा है, जाना है, नहीं जाना है, ये करना है। अच्छा हम 12 बजे चले गए, या अगर हम 11:55 पे गए तो हम वहाँ पे 12:55 पे उठ जाएँगे। ठीक है? ये उनको एब्सोल्युटली। पता। मैं तो अपना फ़ोन पे घड़ी देखती रहती थी कि यार कितना टाइम हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन हम खाना सही से खाएँगे, बातें करेंगे, कॉफ़ी पिएँगे, ठीक है? 59 मिनट के बाद हमें पता चल जाता है किसी तरह उनकी बॉडीज़ को कि ये 59 मिनट्स हो गए, अब मुझे जाना है यहाँ से। तो वो इस तरह से करते हैं काम को बहुत डिसिप्लिन्ड है। क्लियरली। टाइम अगर आप सही कर ले तो आप डिसिप्लिन्ड है बेसिकली। बहुत ज़्यादा। और जनरल कल्चर जो है ना, अर्ली राइजिंग का बहुत ज्यादा है वहाँ पे। हाँ, और ये कि 5 बजे सुबह मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेक, 5 बजे सुबह। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर ना काम को डिवाइड करते हैं। तो जिस तरह डिपार्टमेंट भी बने हुए थे हमारे, वो काम के को डिवाइड करके बने हुए थे। और जब मेरे पास मेरा काम आगे आएगा तो मैं काम शुरू करूँगी, मुझे उससे पहले की कोई फ़िक्र नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी सिस्टम के काम बेस्ड, पे प्रोसेस बेस्ड, या कैंसल कर रही हूँ, ना मैं बाद में कर रही हूँ। मेरे पास ये पीस आया है, इतना सा आया है, तो मैं इतना काम करके ये मुझे देना है, तो मैं ये डिलीवर कर दूँगी। वहाँ पे अच्छा सोफिया, मतलब आप इसको आगे लेके चलेंगे, लेकिन जैसे बताया आप एनईटी से ग्रेजुएट हैं, देयर वाज सम स्किल्स एंड आफ्टरवर्ड्स अपना थोड़ा कंसल्टेंसी भी की, एंड देन आपने काम भी किया लोकल कंपनी में पाकिस्तान में, फिर यहाँ पे जर्मनी में जाके काम किया। तो क्या स्किल्स काम आई? कोई मशवरा देंगे यहाँ पे ऑडियंस को कि यार ये स्किल्स हैं जो मेरी वहाँ पे ये इस तरह से काम आई, मुझे फायदा हुआ इस चीज का? देखिए स्किल एक तो ये होती है कि काम को ना आपने कहना है कि मैं कर लूंगी। मेरा तो ये रहता है, ठीक है ना, कि मैं कहती हूँ कि हाँ मैं काम कर लूंगी, ठीक है, कुछ भी काम है मैं कहती हूँ हाँ ये हो जाएगा। आता है, किया है, कभी कह देती हूँ किया है, कभी कहती हूँ नहीं किया इमरान हुआ, खान लेकिन साहब की तरह। नहीं, 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 इमरान खान साहब की तरह नहीं। उनसे ना मिला है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। मैं कह रहा लेकिन हूँ कि उनको आता सब है, तो हाँ, कहते वो जरूर है वो आता था। वो इसलिए कि वो कुछ और खाते पीते हैं, लेकिन मैं वो खाती पीते नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ अच्छा कि चले। अपने ऊपर ट्रस्ट हम्म। है मुझे कि मैं ये डिलीवर कर दूँगी, और मैं कर हम्म। देती हूँ। ठीक है? तो हम्म। एक ये है, मेहनत कर लेनी चाहिए। टेक्निकल चीज़ नो हाउ अपनी हमेशा अपग्रेड करनी चाहिए। आई थिंक हर साल हम जिस एरिया में हैं टेक्नोलॉजी में, उसमें हर महीने कुछ नया हो रहा है। तो बहुत मुश्किल है कि हम कीप अप रखें, लेकिन हमें ये करना है, क्योंकि इसके अलावा हमारी नया करियर की प्रोग्रेशन नहीं होगी, या नए स्टेप नहीं ले सकते हम अपने करियर में। तो करियर प्रोग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू गो टेक द स्टेप्स। टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा बाहर निकले। जैसे मैं पहले स्ट्रैटेजी में गई, मैंने कहा अच्छा करना ही क्या होगा, मतलब स्लाइड्स ही बनानी होंगी ना, बना लेंगे, स्लाइड्स बना लेंगे। फिर स्ट्रैटेजी से मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट में गई। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, कि आपको कोई मतलब यू कैन मेक द राइट डिसीजंस। तो तो वो स्किल काम आई प्रोडक्ट मैनेजमेंट की। उसके बाद मैं जब जीएसएमए में आई तो मैंने मार्केट एंगेजमेंट की। इससे पहले मैंने मार्केट एंगेजमेंट भी नहीं की हुई थी। तो बस यू यू हैव टू टेक द रिस्क, यू हैव टू टेक द चैलेंज। और ये कि हमेशा अप टू डेट रहें कि ना यार, जो भी एरिया है आपका, अगर आप फाइनेंशियल सर्विस में, फिनटेक में हैं, आप आईओटी में हैं, आप किसी और एरिया में, तो आपने ये समझना है कि मुझे इसके बारे में ए टू जी सब पता है, और मुझे बेसिक्स भी पता है। तो और ये बहुत भी सारे पता लोग होना चाहिए कि आगे क्या आने वाला है, आगे कहाँ पे के क्या आने वाले। डेवलपमेंट हो रही है कंपेटिटर्स का। अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल। बस अपने तौर पे ऐड करूंगा, एक मरतबा सीईओ मेरे आए थे जर्मनी से, तो मैं उनके साथ ड्राइव पे जाते थे कस्टमर पे, तो लंबी ड्राइव थी, घंटे की ड्राइव थी। मैंने बोला सर मतलब आप इतने सीनियर हैं, और मुझे, मैं उस वक्त लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 6 साल पहले की बात है ये, 7 ईयर्स या 2013 हम्म, की। तो मैं बोला कोई एक एडवाइस करेंगे मुझे आप? तो उन्होंने कहा हम्म, था सिर्फ एक एडवाइस ये करूंगा कि डिलीवर व्हाट यू कमिट। आप वाली बात कि हम्म, कमिट कर लिया तो फिर हम्म। उसको डिलीवर भी करना है, सो डिलीवर हाँ, व्हाट यू मतलब कमिट। फिर आपको ऑटोमेटिकली जागने का ऑटोमेटिकली होगा। जो भी, हाँ। सो द मुझे हाँ, अभी तक वो बात याद है 2013 की,
और मैं हमेशा सबको भी यही कहता हूँ, आगे भी एडवाइस करता हूँ कि भाई डिलीवर व्हाट यू कमिट। बिल्कुल। और एक आई थिंक जो चीज़ है वो जनरली करियर में, और मैं खवातीन को ज़्यादा एड्रेस करके कहूँगी कि जो चीज़ जिसकी वजह से मेरा करियर शायद ग्रो किया है अनइंटेंशनली, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं अपने करियर में जो अनकन्वेंशनल थे। जैसे आपने कहा ना, अमेरिका से वापस आ गए, फिर जर्मनी चले गए, या वो कोई कंसल्टिंग ले ली, या कोई ब्रेक ले लिया। तो ये थोड़े अनकन्वेंशनल स्टेप्स हैं जब जो हम ले सकते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं। औरत होने की वजह से मेरा ख्याल है, अगर मैं आदमी होती शायद मेरे पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती फैमिली की, या मेरे पर ऊपर से कहीं से डाली जा रही होती रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल टू माई करियर एंड माई फैमिली एंड फाइनेंशियल वेलबींग। तो मैं यहाँ पे ये करती हूँ कि अच्छा, मैं रिस्क ले सकती हूँ। मुझे अपना ये लगता है कि जैसे मैंने ये IoT वाली कंपनी खोली, मैंने कहा यार ये करना है, ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। It's success, failure, we will see where we get. We'll try to make it successful, लेकिन इसको करके देखते हैं। So मैं चलें, रिस्क लेती हूँ। इसकी तरफ मूव करते हैं, IoT की तरफ, जो आपकी लिंक्डथिंग्स कंपनी है। लेकिन क्या स्टेप लिया, क्या सोचा कि यार अब अपना काम करना है? कब कब जहन में आई ये बात? अच्छा, अपना करती काम तो रही हैं आप, मतलब, कंसल्टेंसी तो करती रही हैं एंड ऑल दैट, लेकिन अब ये है कि भाई फुल टाइम फुल फ्लैश कंपनी खोलनी है और बस अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है और बस इसी में मगन हो जाना है। कब कब ये अच्छा सोच आई? वो देखिए, सोचा मैंने 2015 में, और वो सोचा मैंने इसलिए कि मुझे IoT में इंटरेस्ट हो गया था। मैंने कहा, मैंने करियर शुरू किया था एम्बेडेड सिस्टम्स में, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमें चैलेंजिंग लगती थी। बहुत सारे आइडियाज जो मैंने अभी इम्प्लीमेंट किए हैं, वो 20 साल पहले जब मैं काम करती थी नहीं कर सकते थे, क्योंकि नेटवर्क अवेलेबल नहीं था, पावर की सोर्सेज वो अवेलेबल नहीं थी, आपके पास चिपसेट वैसे अवेलेबल नहीं थे दैट यू कैन डू दिस काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। तो स्मार्ट होम का काफ़ी उस ज़माने में चल रहा था 2015 में, और लिटरली मेरे मियाँ ने कहा कि हमें ये चीज़ें लगानी चाहिए। वो मुझे अली एक्सप्रेस से दिखा रहा था, और उनकी प्राइस, मैंने कहा यार ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। तो देन ही सेड अच्छा तुम कर सकती हो? मैंने कहा हाँ हाँ, ये मैं कर दूंगी। तो उसने कहा अच्छा, ये चीज़ें जो है मैं मंगा दूँ? मैंने कहा मंगवा दो। तो वो मंगवाई। फिर मैं GSMA में काम करती थी फुल टाइम। बहुत ट्रैवल था मेरा GSMA में। मैं वीक में नहीं होती थी, मैं वीकेंड्स पे ही घर होती थी अक्सर। मैं GSMA में बहुत ट्रैवल किया। तो जब मैं वहाँ फिर खैर मैंने बहुत दिन यही चलता रहा कि कैसे इसको शुरू करने बैठूं कब मैं, और मैं ये काम करूं। फिर मैंने 2015 के एंड में सोच लिया कि अच्छा अब ये चीज़ें मैं मंगवाऊंगी। मैंने एक लिस्ट बनाई, हमने अली एक्सप्रेस से चीज़ें मंगवाई, और 2016 के जनवरी में आई हायर टू फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम NED इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। मैंने उनको एक जगह दी, हमने एक जगह .0 में खोली। बिल्कुल लास्ट मिनट में उनके ज्वाइन करने से पहले मैंने कहा यार ईमेल एड्रेस भी देना होगा इनको, क्या कंपनी का नाम रखें? अच्छा नाम ये रखते हैं, लेट देम ज्वाइन, एंड देन दे ज्वाइंड। काम दिया, और आई वाज सरप्राइज, दे वर क्वाइट हैप्पी कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता था कि मुझे 2-3 महीने लगेंगे, वो 3 हफ्ते में हो, लाइक इंटीग्रेशन, कंट्रोलर समझ में आना, कंट्रोलर की कोडिंग, ब्ला ब्ला, सारे काम बहुत आराम से हो गए। तो दैट वाज द टाइम आई सेड कि यार इसको ग्रो किया जा सकता है। सो लाइक आई वुड से February 2016, जब मुझे लगा कि इसको ग्रो किया जा सकता है, उसको कुछ बनाया जा सकता है। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से बात करना शुरू की कि इसको किस डायरेक्शन में लेके जाएं, क्या करें। तो प्रोडक्ट के आइडियाज आते रहे, कुछ लोग कस्टमर्स भी लेकर आए, और फिर या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर हमने उसको सो बेसिकली स्टेप पूरी प्रॉपर वर्किंग थी, पैराशूट से पहन के नहीं कूदे? नहीं, मतलब ये सोचा कि अच्छा ये कर सकते हैं तो हम इसको करके देखते हैं। पहले ट्राई किया, हो गया, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा सही है। और ये मेरा बैकग्राउंड था, तो मतलब आज भी मतलब मुझे कोई हार्डवेयर में चूना नहीं लगा सकता है ना, कि कहे कि मैडम ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोग कहते हैं अक्सर, और हार्डवेयर में मुश्किल भी होता है कि 5 वोल्ट और 3.5 वोल्ट और मिली एम्पियर के करंट, और वो इस तरह के आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं उनको बता देती हूँ कि यार ये इस तरह से करें तो ये हो जाएगा। तो मेरे मतलब इट्स माय एक्सपर्टीज आई वुड से। चलिए ठीक है। चले, अब ऑडियंस को जरा बताएं कि लिंक्ड थिंग्स के पीछे आइडिया IoT क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, और अच्छा इंडस्ट्री तो 4.0 क्या चीज़ है, और देन हाउ लिंक्ड थिंग्स जो है वो इसको प्रोफेशनली देख रही है, क्या सोल्यूशन आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? अच्छा देखिए, IoT, इंटरनेट थिंग्स, एवरीबडी नोज दैट इट्स अबाउट कनेक्टिंग थिंग्स टू द इंटरनेट आफ्टर कनेक्टिंग पीपल टू द इंटरनेट।
आइडिया ये है कि आप यू स्टार्ट गेटिंग डेटा। मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि आईओटी इज द नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। जैसे हमने एक ज़माने में फाइबर डाला या 3G 4G कनेक्टेड हुए, आई कंसिडर आईओटी एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर दैट यू स्टार्ट कनेक्टिंग थिंग्स टू द इंटरनेट। अल्टीमेट गोल क्या है उन चीज़ों को कनेक्ट करने का? वो ये है कि यू स्टार्ट गेटिंग डेटा, यू गेट इनटू प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, यू गेट इनटू डेटा मॉडलिंग, यू गेट इनटू सो यू टेक थिंग्स। ऑटोमेशन एक पार्ट था, जैसे इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं, तो इंडस्ट्री 3.0 तक तो ऑटोमेशन हो गई थी। अब ये है कि यू हैव टू गेट इनटू अ पॉइंट वेयर व्हाट इज बियॉन्ड ऑटोमेशन। सो ऑटोमेशन इज अ बेसिक स्टेप कि आपने कुछ प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर दिया, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, वो खुद ही हो जाते हैं। पानी आ जाता है, कोई प्लांट है उस पर, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से गैस आएगी, या यहाँ से ऑयल आएगा और यहाँ से मटेरियल डलेगा और ऑटोमेशन हो जाएगी। बट दैट्स नॉट इनफ फॉर द फ्यूचर दैट पीपल foresee. People want to not just automate but then get into cost savings with it, bring operational efficiencies, bring more transparency in operations. वो कहाँ से आएगी? वो डेटा से आएगी। तो हम जो इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स करते हैं उनका बेसिक पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से तो ये है कि हम उनको बताते हैं कि कॉस्ट सेविंग्स है आपकी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट कॉस्ट सेविंग्स में आपकी एनर्जी एफिशिएंसीज आती हैं, आपकी मैन पावर की एफिशिएंसीज आती हैं, और इनडायरेक्ट में ये कि हाउ यू कैन एक्चुअली डू प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। तो जब आप प्रोसेस ऑप्टिमाइज करते हैं और उसके साथ आपको नए अपने लीकेजेस भी पता चल रहे होते हैं, तो एक तो ये है कि आपका ख्याल होता है कि मेरा प्रोसेस बिल्कुल सही चल रहा है स्मूथली एंड देयर नो लीकेजेस, बट यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई अ लॉट ऑफ लीकेजेस। तो वो लीकेजेस भी आपको पता चलता है। ठीक है। अच्छा, लिंक सो क्या करते हैं? जी जी। हमने क्या किया है अपनी अप्रोच से, हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। अभी होता भी ये है कि आईओटी बहुत फ्रेगमेंटेड भी है, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो आईओटी कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है। आईओटी में एक कंपोनेंट हार्डवेयर का है, एक नेटवर्क का है, एक बैक एंड प्लेटफॉर्म है, एनालिटिक्स है, अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशंस अलग हैं, फिर उसके बाद एआई एंड ऑल दैट। सो दैट्स लाइक अ फुल स्टैक। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं, और इसमें डिफरेंट लोग हैं। सो लाइक कोई हार्डवेयर बना रहा है, हार्डवेयर मोस्टली चाइनीज कंपनी बना रही होती है, नेटवर्क प्रोवाइडर सेल्यूलर कंपनीज होते हैं या नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं। फिर कोई प्लेटफॉर्म बना रहा होता है तो आप AWS पे कनेक्ट कर लें या आप IBM पे कनेक्ट कर लें, और फिर उसके ऊपर आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स होते हैं। सो इफ अ कंपनी टुडे, स्पेशली इन पाकिस्तान, इफ दे वांट टू अडॉप्ट IoT, वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको ये नहीं पता कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना वो बहुत फ्रेगमेंटेड है। तो वी टेक दैट ओनरशिप। हम कहते हैं आप अपना यूज केस बताएं, वी विल डू एवरीथिंग फॉर यू। सो हम वहां से शुरू करते हैं जहाँ से कि डिवाइस कौन सी होगी, तो डिवाइस कस्टमाइजेशन, डिवाइस हमारी अपनी होती है। पीसीबीज हमने खुद बनाए हुए। अब तो एक ही पीसीबी है जिसपे हमारी कोई 10 या 20 यूज केसेस चल रहे हैं एक ही पीसीबी के ऊपर, ठीक है। तो वो ऑप्टिमाइज कर लिया है। पावर सोर्सेज हम आपको डिफरेंट दे सकते हैं। तो हमारे जैसे डिवाइसेस गुड्डू बराज और सखर बराज पे भी लगी हुई हैं, जहाँ पे जैमर्स भी होते हैं, जहाँ पे पावर भी डिसरप्ट रहती है, इंटरप्ट होती रहती है, सॉरी, पावर भी इंटरप्ट होती रहती है। हमारे एग्रीकल्चर में है जहाँ ना पावर है ना इंटरनेट है, तो वहाँ पे कैसे लगाते हैं हम। इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, enterprises में और commercial units में लगे हुए हैं। तो we take care of the hardware and we provide all the way to apps, dashboard, analytics, और even automation के अगर आपने एक process से दूसरा trigger करना है तो वो करके we provide that whole thing, so whole service and after sales service as well. ठीक है। तो इसमें आपने कहा कि इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है एंड कमर्शियल साइड पे। एग्रीकल्चर में मतलब किस ब्रॉड लेवल पे? इज इट लाइक अ बिग फार्म्स जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, या आप कोई भी लोकल छोटा फार्मर वगैरह इसको भी आप लोग डिपेंडिंग ऑन द अच्छा, नीड यू कैन प्रोवाइड सम सर्विसेज? अच्छा, IoT में जनरली हमारा मॉडल B2B है, सो वी डोंट वांट टू गो टू द एंड यूजर। ओके। हमने अभी फार्मर एडवाइजरी सर्विसेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को फोकस किया है। सो मेहरान यूनिवर्सिटी में एक है US सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन वाटर, उनके साथ हमने मिलकर बराज पे लगाया। फिर उनके साथ ही हमने कुछ और एग्रीकल्चर के सॉइल मॉनिटरिंग यूनिट्स लगाए मीरपुर खास में। फिर एक वो रिसर्च बेस्ड नहीं था, दैट वाज योर कस्टमर्स, राइट? यूअर्स, they are customers, they are doing research, we provide या them the tools to do the द research, ठीक है, रिक्वायर्ड सर्विसेज, ओके। required services।
तो हमारी अपनी रिसर्च नहीं है उसमें, लेकिन वी प्रोवाइड देम, लाइक वो कहते हैं कि डेटा को इस तरह प्रेजेंट करते हैं, डेटा की ये चीजें निकाल दें, यू नो एनालिटिक्स ऑन द डेटा, तो वो हम करके देते हैं, बट इट्स बेसिकली देयर प्रोडक्ट, दे टेक केयर ऑफ इट। सो हमारा फोकस, हम डोमेन स्पेशलिस्ट भी नहीं है उसके। सो सेम विद एग्री, हम लोग डोमेन स्पेशलिस्ट नहीं है, हम एक फार्मर एडवाइजरी सर्विस को भी देते हैं, जहाँ पे हम सॉइल मॉनिटरिंग और वेदर स्टेशन भी लगा कर देते हैं, तो हमने उनको वो भी करके दिया। इसी तरह इंडस्ट्री में भी जो है वो इसी तरह का प्रोजेक्ट है हमारा कि हम मशीन मॉनिटरिंग करके देते हैं, प्लांट की कंप्लीट मॉनिटरिंग करके देते हैं, प्रोसेस ऑटोमेशन भी करके देते हैं। तो और इसमें अभी करंट जो आप लोगों का क्लाउड सर्विस है वो AWS बेस्ड है या यू आर यूजिंग डिफरेंट? वी आर यूजिंग मल्टी क्लाउड है, हम लोग IBM पे हैं, वी यूज देयर ब्रोकर एंड वी यूज मोंगो एज आवर डेटाबेस। ठीक है, बेहतरीन है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। वी विल टॉक अबाउट कोशिश फाउंडेशन आल्सो। We already have talked in one session with Raghib Hussain Saab. He's like active participant as well. What's your role in this foundation? मेरा बहुत क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा अटैचमेंट रहा है 2005 से, ऑफ एंड ऑन। आई एम क्वाइट impressed with the idea that you have to give back. So ये आइडिया मुझे अच्छा लगा उनका, और मेरी उनसे, ये लोग हमारे से सीनियर थे 3-4 साल, तो उनको मैं जानती तो थी ऐसे ही, लेकिन हमारी बातचीत हुई इसके ऊपर। फिर आई हैव सपोर्टेड मोर ऑन द ग्राउंड एफर्ट्स, बिकॉज ये ज़्यादातर लोग इसमें कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो मैंने इनको ऑन द ग्राउंड दिया। अभी आई थिंक आई एम इन्वॉल्व इन द स्कॉलरशिप स्कीम, जो मास्टर्स के स्कॉलरशिप्स होते हैं उसकी बेसिकली मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी थोड़ी बहुत मैं करती हूँ यहाँ पर। ओबियसली उनका बहुत बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव फुल टाइम एम्प्लॉइज एज वेल एंड ऑल दैट, लेकिन मैं उसमें जो है वो मास्टर्स वाले प्रोग्राम में इन्वॉल्व हूँ, एंड इट्स अ वेरी गुड एफर्ट, थैंक एंड यू। इफ पीपल सो वांट टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि वो बैचलर्स में 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं एवरी ईयर। ये बैचलर्स भी है एंड देन मास्टर्स भी है, आई मीन लाइक इवन PhD पे भी वो सपोर्ट करते हैं, तो दैट्स वेरी यूनिक। आगे बढ़ते हैं, काफी टाइम हो गया, पता भी नहीं चला, इट्स एन आवर नाउ। सो we'll start with the taking questions from the audience. So जो भी audience है who's watching and they want to ask questions, now is the time that I'll take now the questions. Please start commenting and we'll be able to take this question live. All right, so पहला question. You are probably one of the very few women entrepreneur of Pakistan, especially from an engineering domain. What do you think is the reason females don't come forward? अच्छा देखिए, मैं बताती हूँ आपको, ये बहुत हमने मेरे दुखती रग पे हाथ रख दिया कि बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। मतलब मैं NED के ज़माने से मुझे पता है कि औरतों को इंजीनियर तो समझा ही नहीं जाता है, औरतों को इंसान भी नहीं समझा जाता है इस मुल्क में बहुत दफ़ा। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और एंटरप्रेन्योर के लिए और ज़्यादा, मेरे लिए भी है। मेरे आज भी मैं अपना प्रोडक्ट लेकर जाती हूँ किसी इंडस्ट्री के पास, तो वो कहते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तान में हो सकता है, जी हो सकता है, बट दे ऑलवेज डाउट कि यार ये एक औरत बेच रही है, ठीक है, व्हाट डज शी नो। तो आप इमेजिन करें कि कोई मुझसे 20 साल छोटी लड़की है और वो जाती है और वो बेचना चाहती है कोई चीज, तो उसको कितने लोग सीरियस लेंगे। और फिर ये एक है कि औरतों को ना एक खास डोमेन हमारे लिए सिलेक्ट कर दी गई है। तो अगर आप देखें आजकल कौन सी औरतों विमेन एंटरप्रेन्योर पे बहुत काम हो रहा है, लेकिन उनसे क्या काम करवाया जाता है कि अच्छा ये खाना पका के बेच देंगी इंटरनेट पर, ये फैशन या इस तरह की सर्विसेज में आ जाएंगी, पर्सनल केयर वाली सर्विसेज में आ जाएंगी, हेल्थ केयर में आ जाएंगी, या एजुकेशन, ठीक है, ये ट्रेडिशनल। होम डिकोर हाँ, सबसे बड़ा। हाँ, कोई पर्सनल केयर या खाना बेचते हैं, मतलब सारे बेंचेस औरतों के अक्सर खाना बेच दें, बच्चों का ख्याल कैसे रखें, उनकी बच्चों की चीजें बेच दें, मतलब लाइक यू नो वो जो ट्रेडिशनल रोल है उस वही रोल है। अब आपसे मुझे कितने लोग सीरियस लेंगे, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मेरे लिए आपने इसको ओवरकम कैसे किया, बीइंग कि भाई अगर आपको ये चैलेंजेस लग रहे हैं, कौन कितना सीरियस लेगा? नहीं किया, बिल्कुल इसको नहीं, चैलेंज नहीं बहुत किया? मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। देखिए मतलब बट यू एक आर द होता है वन हु हैज सक्सेसफुली डन इट, मतलब मार्केट में नाउ यू आर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत बड़ा स्केल पे काम कर रहे हैं, लेकिन हाउ
कोई टिप्स देना कि भाई कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है जिसको ये चैलेंज आ रही है एंड शी वांट टू लर्न फ्रॉम यू, क्या टिप देंगे उसको कि भाई हाउ टू ओवरकम ऑल दिस? आई थिंक अपनी पर्सनल स्टेडफास्टनेस है कि आपने रहना है कि मैंने ये काम करना है और कुछ भी हो जाए। देखिए लेकिन बहुत चैलेंजिंग है, मैं इसको बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करना चाह रही, मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ, मैं मर्दों को भी बताना चाह रही हूँ कि हमें क्या चैलेंजेस होते हैं। एक तो रिस्पेक्ट, हम लोग कहते हैं कि हम औरतों को रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन नहीं देते, ठीक है ना। तो मुझे जो है, अगर जैसे मेरा कोई यूनिट किसी इंडस्ट्रियल फ्लोर पे प्लांट पे लगा हुआ है तो वहाँ जो छोटू है वो भी मुझसे बदतमीजी कर सकता है किसी भी वक्त। हालांकि उसका सीईओ शायद अपनी थोड़ी सी एटिकेट्स में ये ना करे मेरे साथ, लेकिन और वो शायद थोड़ा सा इमेंसिपेटेड हो तो वो कह देगा हाँ इनका सोल्यूशन ट्राई करते हैं, देखते हैं, लगाते हैं, चलाते हैं, और कॉन्फिडेंस शो करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, उस वो आदमी जो ऑपरेटर है या जो इस्तेमाल कर रहे हैं, दे हैव देयर ओन एटीट्यूड्स। वो दो तरह से होते हैं, एक तो ये कि जनरली औरतों की रिस्पेक्ट नहीं है हमारी सोसाइटी में, उसकी वजह से होता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो है ना, वो उनको लगता है कि अच्छा इनको कैसे आता है, ठीक है ना, मतलब ये तो औरत है और इनको कैसे आता है और ये मुझे कैसे सिखाएंगी। तो मुझे बहुत दफा ना वो ऑपरेटर सिखा रहे होते हैं कि ये कैसे काम करता है, मतलब आप उनको कहें यार ये मैंने बनाया है, मुझे पता है, मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन वो आपको ये बताते हैं कि ये हुआ। तो देखिए आप जैसे का जो सवाल है ना कि क्या करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि मुझ जैसी औरतें ना थक गई हैं कि हम रोजाना जाके लड़ते हैं, मतलब इट्स लाइक आप सुबह उठे और आप गए आज क्या नेवर होने एंडिंग वाला फाइट, है, इट्स लाइक नेवर तो एंडिंग फाइट्स। नेवर एंडिंग फाइट है, ठीक है। तो मेरा बट ख्याल है अब जो डोंट मैंने डोंट यू जैसे थिंक कि जो आदमियों को भी चाहिए बिजनेस होता है उसके लिए ये एक रियल चैलेंज भी है? मतलब इवन जो मेरे दोस्त एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब वो बीपी के मरीज होने वाले हैं बस करीब करीब, पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, बाहर भी काम कर रहे हैं। इट्स लाइक सो डू यू थिंक कि मतलब इसका मतलब है आपको एड ऑन मजीद चैलेंजेस है? दो जो नॉर्मल चैलेंज है वो, बहुत एंड देन दिस इज अ स्मॉल पोर्शन जिसमें एडेड बिल्कुल चैलेंज ये है कि दे आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली। ओके। बीपी से ज्यादा मुझे लगता है मैं बाइपोलर भी होने वाली हूँ, क्योंकि आप टीम को गुस्सा कर रहे होते हैं, कस्टमर के सामने आप मुस्कुरा रहे होते हैं, घर आते तो कुछ और पर्सनैलिटी, तो मैं बाइपोलर ज्यादा होने वाली हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ना वो टाइम आ गया है कि आदमियों को चेंज होना है। तो जो आदमी लोग सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको चेंज होने की जरूरत है। औरतें अपना काम कर लेती हैं, देखिए प्रोफेशनली भी अच्छा, इसकी कोई ये भी रीजन हो सकती है कि जनरली अगर वो 100 बंदों से मिल रहा है उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर में बी कुड बी 5 और मे बी इवन लेस और 4, मतलब अगर आप क्वांटिटी वाइज देखें, पाकिस्तान की बात करता हूँ मैं, बाहर की बात नहीं करता, तो दैट जैसे दैट कुड बी मे बी द रीजन बिकॉज आप जनरली एक बंदे से मिलते जा रहे हो। मतलब उसको मैं अगर मैन वुमेन को हटा दूं, अगर आप 95 किसी एक नेशनलिटी से मिल रहे हो और 5 किसी और नेशनलिटी से मिल रहे हो, तो 95 आपको जरा ऑब्वियसली थोड़ा सा बेहतर की तरफ चले आता है, अनलेस कि उस 5 में से कोई बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी है। तो दैट इज लाइक ह्यूमन नेचर ऑल्सो, व्हाट डू यू थिंक? देखिए है तो, लेकिन ये देखें कि अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो और हम ये चाहते हैं कि औरतें आगे बढ़ें, अगर हम ये चाहते हैं कि इस सोसाइटी में इक्वालिटी हो और आगे बढ़ा जाए और इस पूरी जेंडर उसमें से निकल जाया जाए, तो उसके लिए मेरा ख्याल है अब आदमियों को अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, श्योरली। ना कि औरतों को, क्योंकि मैं तो थक गई हूँ, ठीक है। मैं उसी तरीके से एक सीईओ से बात करती हूँ जिस तरह मैं एक प्लांट मैनेजर से बात करती हूँ, जिस तरह मैं एक मशीन ऑपरेटर से बात करती हूँ, लेकिन मुझे जिस तरह की बदतमीजी मिलती है वो सिर्फ मुझे पता है। तो ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। I like this question. This one. Do you have any plans to target the US market with LinkedIn? सो अभी नहीं Why है। only US? Why not the complete world? अच्छा देखिए, मेरा जो फोकस है ना वो हम्म। इमर्जिंग मार्केट्स है। मेरा हम्म। ख्याल है कि यहाँ के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं और यहाँ आईओटी की अडॉप्शन मुख्तलिफ होगी। तो हम्म। आपको यूएस में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और यूएस के ऑप्शंस जो हैं वो यूएस की कंडीशंस में, या इवन जर्मनी के ऑप्शंस जर्मनी या वेस्टर्न यूरोप या डेवलप वर्ल्ड की ऑप्शंस डेवलप वर्ल्ड में काम करेंगे। मैं वहाँ आईओटी कर रही हूँ जहाँ ना बिजली होती है ना इंटरनेट होता है, ठीक है। तो मुझे अपनी प्रोडक्ट दूसरे तरीके से बनानी है। मुझे Surely. प्रोडक्ट लोगों के लिए बनानी है जो कि इतने एजुकेटेड नहीं है, और लेकिन उनके चैलेंजेस हैं। तो हम लोग जो मेन चैलेंजेस है वो ओब्वियसली हमारे रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, और वो पाकिस्तान के हो, इंडिया के हो, बांग्लादेश के हो, ब्राजील के हो, फिलीपींस के हो, सबके, कीनिया हो, सबके वो है। तो मेरा ख्याल है, मेरे हमारी कंपनी का लोगो है आईओटी फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, क्योंकि हमारा ख्याल है कि इमर्जिंग मार्केट्स में इसकी बहुत ज्यादा एक्चुअल नीड है, मतलब यू कैन एक्चुअली गेन बेनिफिट्स फ्रॉम वन मंथ टू द अदर। हमने जहाँ पे सॉल्यूशंस लगाए हैं वहाँ एनर्जी सेविंग्स फॉर एग्जांपल 60% सेविंग्स है, 60%। तो आप बताएं कि
यहाँ पे ज्यादा जरूरत है ना कि वहाँ पे जहाँ पे हमें एकदम आई So, थिंक, और मेरे so what about Africa then? हाँ बिल्कुल, अफ्रीका Africa स्टार्ट is the में biggest, इमर्जिंग yeah. मार्केट, Africa is I think, biggest pool of the emerging markets. I mean, like you start from बिल्कुल north towards the south. बिल्कुल। सो वी Yeah. वांट टू टारगेट ऑल इमर्जिंग मार्केट्स। फॉर अस पाकिस्तान इज अ टेस्ट बेड, क्योंकि इससे ज्यादा मुश्किल कंडीशंस कहीं नहीं हो सकती है, हमारा ख्याल है, इन By मेनी the way, वेज। are you aware about this exhibition thing that Pakistan do? This TDAP, Trade Development and Authority of Pakistan. They took the traders and the businessmen, and wherever the कोई exhibition होता है, maybe Africa में, and they give you subsidy on these exhibitions, so you अच्छा, can ये also मुझे नहीं participate. पता। Yeah. अच्छा, Okay. ये Yeah. हाँ, लेकिन ये कि अभी तो एग्जीबिशन नहीं हो रही इस साल, Yeah. लेकिन हम Absolutely. लोग जीएसएमए Yeah. में गए थे। जीएसएमए में Mm-hmm. पहले गए थे, वो जो एमडब्ल्यूसी होता है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, और इस दफा भी Mm-hmm. जाना था हमने मोबाइल वर्ल्ड Mm-hmm. कांग्रेस में। हमारी प्रेजेंटेशन भी थी एग्री के ऊपर, No, लेकिन TDAP ओबियसली क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल वो 60% सब्सिडाइज कर देते हैं आपको, या 40% सब्सिडाइज कर देते हैं। दुबई में हो रही है या अफ्रीका में हो रही है, तो जो भी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन जा रही होती है उनको साथ लेके चलते हैं। एनी हाउ, लेट्स मूव ऑन। Next question. When you talk about startup in Pakistan, what is the biggest challenge generally in Pakistan for startups? अच्छा देखिए, अगर आप बी टू बी स्पेस में, तो बिगेस्ट चैलेंज ये है कि यू नीड कस्टमर्स। Hmm. स्टार्टअप कुछ नहीं है, स्टार्टअप इज अ बिजनेस, ठीक है, एंड फॉर Hmm. प्रॉफिटेबिलिटी यू नीड कस्टमर्स। पाकिस्तान में कस्टमर लेना बहुत मुश्किल है, बी टू बी में भी और बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने वो पढ़ी हो क्रॉसिंग द कैज्म, जिसमें कि वो जेफरी बात करता है कि आपने पहले अर्ली अडॉप्टर्स के पास, इनोवेटर्स के पास जाना होता है, फिर अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, फिर लेट अडॉप्टर्स होते हैं, फिर मास मार्केट हो जाता है या जो भी। द थिंग इज कि आप ये कैज़म क्रॉस ही नहीं कर सकते। हमें ये लगता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपके कस्टमर्स नॉन पे, या तो वो कहते हैं मुफ्त में लगाते हैं आप, ठीक है, या वो आपसे कहते हैं कि, या वो आपको Actually, दौड़ाते this is रहते a हैं। model. Actually, this is a model also. मैंने देखा यहाँ पे भी ये मॉडल है कि the company ask कि भैया अगर आप आ रहे हो कि भाई 60% 40% आप सेविंग करके दोगे हमें, you are claiming that, okay, whatever it is. तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि यार okay, you invest from your side or from the bank, and whatever savings are coming, you take half of it or you take 70% of it. So पाकिस्तान में did बिजनेस you ever आपको पैसे ever thought देंगे। about? मैंने Sorry. बिल्कुल पढ़ा, मैंने पढ़ा भी ये बिजनेस मॉडल के Mm-hmm. आप देखो, पाकिस्तान में बिजनेस पैसे नहीं देता। लाइक अगर मैं तो अगर 100% को एडवांस नहीं देता मुझे, तो मैं नहीं काम करती। कोई बहुत कस्टमर कह देता है कि 50% एडवांस ले लो, तो मैं 50% एडवांस पे काम करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो 50 लेने के लिए ना मुझे लिटरली जलील कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्या मांग रही हूँ उनसे। तो अगर मैं Okay. इस वाले मॉडल में जाऊंगी ना, ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पेमेंट टाइम पे देने का कोई तरीकेकार नहीं है। मुझे कस्टमर चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट बाद में आएगी, या मुझे बाकी चीजें बाद में होंगी, लेकिन अगर मुझे कोई कस्टमर नहीं मिलता। अब आजकल क्या है, ये एंटरप्रेन्योर का है, सो प्रोग्राम चले और स्टार्टअप्स। अब क्या है, बैंक्स फंड कर रहे हैं स्टार्टअप्स प्रोग्राम्स को। भाईजान, आपके पास कस्टमर आ रहा है, यू कैन, बिजनेस आ रहा है अगर आपके पास, तो आप उसको लेकर ऑन बोर्ड ले आए ना। तो अगर उसको एक पहला कस्टमर मिल जाएगा, देन इट कैन गो ऑन एंड ही कैन सेल मोर, ही और शी कैन सेल मोर। लेकिन ये वाले मॉडल नहीं आ रहे इन लोगों की तरफ से। ये बिजनेसेस को बिल्कुल, मतलब एसएमई होना ना इस मुल्क में बहुत मुश्किल है, But I बहुत believe, मुश्किल है। Sophia, for the solar technology, all that, ये model have started working in Pakistan actually. The ask कि भाई companies are asking us to invest, and then whatever saving they are making, they pay. Anyhow, I do understand the challenges in Pakistan. This is like this. Getting money is not very easy, surely. It's Next not, you question can पे make चलते it, हैं. you don't get Hmm. revenue. It's true. All right. So I checked the website and looked at few projects. Great work, I must say. I would like to know what's the plan of monetizing air quality monitoring data. Also, any actionable insight that's collected and provided to the city slash municipality. अच्छा, हाँ, तो देखिए मोनेटाइज, अभी हमने इसको मोनेटाइजेशन की तरफ नहीं लेकर गए हैं, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेयरनेस क्रिएट ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने अभी कल ही हमने अपनी वेबसाइट को भी रिवैम्प किया है, जहाँ पे हमने डेटा का अलग सेक्शन बनाया है, सो दैट पीपल स्टार्ट टू बेसिकली बी अवेयर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सो ये अभी प्लान है। म्यूनसिपलिटी को हमने नहीं दिखाया, हमने कुछ लोगों को फेमिलराइज करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं है। लेकिन देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स पे अभी आर बिडिंग, जहाँ पे कि देयर इज सीरियस फंडिंग,
to deploy air quality monitors. तो वहाँ पे हम bid कर रहे हैं और hopefully once we have this then we will be able to monetize it as well. लेकिन जो पहला initial इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए वी वुड लाइक टू सी ग्रांट्स और हमने किया है। कराची में आपने देखा होगा कि हमने 11 लगाए थे, so one of them was paid. तो ये मॉडल भी हमने देखा कि अगर लाइक someone wants to finance one, especially people living abroad, one very good friend actually bought one and deployed it at one of his old houses. He said कि मतलब मुझे अटैचमेंट की बात है कि मुझे वहां से भी डेटा मिल जाएगा एयर क्वालिटी का ऑनलाइन एंड ऑल। तो इस तरह के हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मोनेटाइजेशन अभी हो नहीं सकती एयर क्वालिटी में मुझे। अच्छा, इनसाइट्स जो मुझे मिली है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने, आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको प्री लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन बड़ा क्लियर कराची का एयर क्वालिटी का फर्क नजर आएगा। कराची की मॉनसून एंड प्री मॉनसून आपको एयर क्वालिटी में फर्क नजर आएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारा ऑफिस चारा फैसल पे, वहाँ पे जो हम हाईएस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स नोट करते हैं, विच मीन्स के वर्स्ट एयर क्वालिटी है, वो उस वक्त होती है जब लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं और पिकअप करने आते हैं। तो इमेजिन, मतलब वो टाइम आप समझेंगे कि पीक ट्रैफिक आवर्स नहीं, पीक ट्रैफिक आवर्स से ज्यादा ये वाला टाइम है जिसमें लोग अपने बच्चों को एक्सपोज करते हैं बुरी एयर क्वालिटी से। ठीक है, ओके, काफी बड़ा सवाल है। लेट्स टेक दिस लास्ट वन क्योंकि काफी ऑलरेडी टाइम ले लिया। थैंक्स अ लॉट फॉर यू। नहीं, मैं तो कर सकती हूँ, मुझे बताइए सवाल। चलें, यस। ये बड़ा अजीब सा सवाल है, काफी लंबा सवाल है। लंबा सवाल भी है, इसका जवाब भी लंबा हो सकता है। देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको भी पता होगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत तरीक़ों से आसान हो जाती है अगर आप बाहर रह रहे हो। मतलब आपके छोटे-छोटे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। मतलब मुझे भी लगता है कि अगर मैं बाहर चली, मैं रही भी हूँ बाहर, और मुझे लगता है कि मेरे छोटे मसाइल ख़त्म हो जाते थे कि घर में पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, बाहर निकलूँगी तो आज क्या होगा, सड़क बंद होगी, खुली होगी। ये जो छोटे-छोटे मसाइल हैं ना, ये नहीं होते और मुल्कों में, और यहाँ होते हैं। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर पूछा जाए कि और क्या मसला है, तो आई थिंक मतलब मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ। थोड़ा-सा ये लेफ्ट हैंड है, हाँ, इसी साइड पर होती हूँ मैं। ज़िंदगी के मैं प्रोटेस्ट वगैरह में भी जाती हूँ। सिविल राइट एक्टिविस्ट, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, हाँ, तो एक्टिविस्ट हूँ मैं, एनवायरनमेंट पे भी काम करती हूँ, सिविल राइट्स पे भी। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव होता जा रहा है, और अगर मेरे पास कोई रीज़न होगा पाकिस्तान को छोड़ने का, तो वो यही होगा कि रिप्रेशन है। तो बहुत ज़्यादा, मतलब, और इसकी वजह से ना लोगों ने सेल्फ सेंसरशिप ले ली है, और इसकी वजह से ये हुआ है कि बाज़ लोग बहुत ही आपसे अहमकाना बातें भी करने लगे हैं, क्योंकि आपको ना वो उस तरह का कभी-कभी वो लोग नहीं मिलते आपको कि जिनसे कि आपकी मेंटली आप उनसे कोई बात खुल के कर सकते हो। तो रिप्रेशन मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर तरह का एक्सट्रीमिज़्म बहुत बढ़ गया है, तो वो चैलेंजेस हैं। अब उसमें मैं इससे पहले मैं असदुल्लाह से भी बात करी थी कि जैसे छोटी सी अपॉर्चुनिटी निकल आती है। मैं साइकिलिंग करती हूँ हर संडे, ठीक है, तो अब कोई कहे कि आपको कौन रिप्रेशन दे रहा है, आप तो अपनी पूरी किट में जाती हैं सुबह को साइकिल चलाने संडे को। तो हाँ, कुछ एवेन्यूज आपको बहुत ही, क्या कहना चाहिए, आइलैंड लाइक एवेन्यूज मिल जाते हैं जिसमें कि आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन जनरली मेरा ख्याल है कि रिप्रेशन इस मुल्क में बढ़ गया है, इनटॉलरेंस बढ़ गई है, किसी और की बात सुनना नहीं है, अपनी बात करना है। तो सोशल मीडिया पे आने की वजह से लोग बहुत अपनी बातों को एम्पलीफाई करते रहते हैं और समझते हैं जिंदगी में भी यही करना है उन्होंने ना, कि मतलब ट्विटर ऑफलाइन जाने के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी को एम्पलीफाई करना है। तो वो है, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आई वुड नॉट से कि कोई वापस आ जाए, फॉर एग्जांपल। आई गॉट ये योर देखिए, फोटो साइक्लिंग। हाँ, मॉडल कॉलोनी के पास खड़ी हुई हूँ मैं काफी साइकिलिंग करती हूँ। गिडानी बीच तक जा चुकी हूँ, मुबारक विलेज जा चुकी हूँ, हब डैम जा चुकी हूँ, ठडो डैम, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मैं साइकिलिंग करती हूँ। और ये मेरा एक आउटलेट है, मतलब मैं अपनी सारी एनर्जी चले, मैं एक दो बहुत सवाल और आगे पॉजिटिव। हैं। यू आर स्टेइंग, तो लेट्स टेक दीस क्वेश्चंस। हाँ, मैं तो
ठहर Yes. सकते हैं, मेरे को Do you वक्त पे और support do you support research in Pakistan and joint teams applying for global and local grants such as HEC and GCRF? If maybe not, in little, then little bit. yeah. Yes, we would like to. We would like to. We haven't. So, like, हमारा जो project है मेहरान यूनिवर्सिटी के साथ US Center for Advanced Studies in Water, वो इसी तरह का एक project है जो कि हमने एक पायलट करके देखा था. I think कि इसमें बहुत ज़्यादा opportunity है रिसर्च करने की, क्योंकि अभी लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं आप फोरकास्टिंग कर लेना, आपके पास तो इतना ये आप लगाती हैं, तो आपका वेदर स्टेशन फोरकास्टिंग क्यों नहीं करता? तो आपको उनको समझाना पड़ता है कि भाईजान पहले आपको डेटा चाहिए, फिर आप फोरकास्टिंग करने जाएंगे ना. आपके पास बेसलाइन ही नहीं है, हमारे पास क्रॉप का डेटा नहीं है, हमारे पास मशीन्स का वो डेटा नहीं है. पाकिस्तान में मशीनरी खरीदी जाती है सेकंड हैंड. Second hand. तो Second कहीं hand का की भी second hand. बिल्कुल. तो यानी कि कहीं से पूरा प्लांट उठ के आ जाता है जो ऑक्शन हो रहा होता है. अब वो मशीन किस हालत में थी, उसकी रेटेड वैल्यूज नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा. सो यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस. आई वुड लाइक टू मतलब you गेट have to इनटू. install जो सेंसर्स होते हैं पहले उस पे आप बात करेंगे, उसके बाद फिर अगर डेटा पॉइंट्स बनेंगे उसके. यस. बिल्कुल. मतलब आपने जैसे अगर एग्रीकल्चर में चलाना है तो आपने एक क्रॉप साइकिल चलाना है, ठीक है. और वो क्रॉप साइकिल लंबा है, 5-6 महीने का है, ठीक है ना. तो आपने पहले 5-6 महीने का डेटा जमा करना है, फिर करना है. तो ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे लोग क्विक सोल्यूशन की बात करते हैं. आप उनसे कहेंगे, और कोई बेच भी रहा होगा, कोई अपना सोल्यूशन पाकिस्तान में इस तरह भी कह रहा होगा, हाँ मेरा वेदर स्टेशन लगा ले, मैं आपको अभी फोरकास्टिंग करके बता देता हूँ, लेकिन जो कि सच नहीं है, ठीक है. तो सच ये कि हमें डेटा लेना है. एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी. हमने किया भी है US सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के साथ ग्रांट्स के लिए अप्लाई. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर विल गो टुवर्ड्स द क्लोजिंग. Is there any strong support infrastructure that encourages more women to become entrepreneurs in Pakistan and solve problems that matter most to them? सो देखिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं. अब इस पे हम बात कर लेते हैं. अगर मैं लंबा जवाब दे दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप ना एक ट्रेंड बन गया है, ठीक है. अब ये एक ट्रेंड है, और हर उसकी तरह ना इसके अक्रॉस कुछ लोग हैं जो कि मेंटर्स बन गए हैं या वो फैसिलिटेटर बन गए हैं. तो वो एक फंड है, और फंड के बाद बीच में ये लेयर है जो कि प्रमोट करती है, और नीचे एंटरप्रेन्योर है. तो सबसे ज्यादा फायदा अभी मिडिल लेयर को हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, मेंटर्स का. जो ट्रांजैक्शन कर रही है, ठीक है. ठीक है. जो जो ट्रांजैक्शन करती है, मतलब ये कि वो पैसे लेती है किसी डोनर से या किसी फंड से, और वो कहती है कि मैं एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करूंगी, या मैं करूंगा एंटरप्रेन्योर्स को, और मैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करूंगा. अब नोबडी इज एक्चुअली लुकिंग एट ये इन एंटरप्रेन्योर्स को क्या चाहिए. 5-6 साल हो गए पाकिस्तान में ये ट्रेंड चलते हुए, कोई इस तरह का डेटा एनालिटिक्स नहीं हुई कि भाई ये जो ABCDE मिडिल में बैठे थे, इन्होंने क्या फायदा पहुंचाया पूरी इंडस्ट्री को, एंटरप्रेन्योर्स को क्या बनाया, टेक्नोलॉजी में क्या फायदा किया, कितने इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट दिलाई, कितना इन्होंने इनको बिजनेस को ग्रो किया. इसके ऊपर कोई चेक नहीं है. तो ये जो चीज है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है. आई वुड से पेपर पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है. आजकल भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे के विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज किया जाता है, उनको बताया जाता है. आई स्टे अवे फ्रॉम देम, इसलिए कि वो उनके लिए जहन में जो वहाँ पे लोग बैठे हैं, उनके जहन में औरतों को 4 काम करने चाहिए: एजुकेशन, हेल्थ, एज आई टोल्ड यू, पर्सनल केयर, इंटीरियर, और एक और क्या था, बहरहाल औरतों के यही 4-5 काम है, और कुकिंग, फूड. तो ये 3-4 काम अगर औरतें कर रही हैं, इसमें कोई मॉडल ले आए तो ये है. दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में जो फंड्स हैं वो अब उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है इन लास्ट 1 or 2 years, और वो फंड्स के जो मैनेजर्स हैं दे आर वेरी वेरी रिस्क अवर्स. तो वो क्या करते हैं कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन प्रूवन बिजनेस मॉडल, जैसे कि ई-कॉमर्स हो गया. अच्छा, एक करीम हो गया तो 4 करीम हो जाए. अच्छा, 4 करीम इस तरह से हो जाए कि कोई स्कूल वैन का करीम हो जाए, तो कोई ऑफिस ले जाने वालों का करीम हो जाए, तो कोई खाना पहुंचाने वालों का, या फूड डिलीवरी बिजनेस है. इस तरह के चीजों में ना, जहाँ पे कि दे हैव सीन बिजनेसेस स्केल where they don't have to invest anything from their side in terms of intellectual capabilities, because they will take one slide out of anybody else's program or business, और आप कहेंगे ये implement करो, ये implement करो. तो वो इस तरह का है. आई थिंक अभी बहुत नेसेंट है ये वाला जो मॉडल है ना, जिसमें कि कोई बीच में बैठा हुआ है, कोई फंड है, कोई सिखा रहा है, और एंटरप्रेन्योर्स हैं. इसमें सबसे ज्यादा जो बेचारे हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है. बिल्कुल हम सबसे बेचारे हैं, बिकॉज वी आर आस्क्ड टू वर्क,
हमसे कहा जाता है, जो ये बीच वाले हैं ना, ये कहते हैं मोटिवेटेड भी रहो, काम भी करो और सैलरी भी नहीं लो, और इस तरह से अपने काम को आगे मिडिल बढ़ाओ मैन तो ना। वैसे हमेशा से कामयाब है पाकिस्तान में। हाँ, और मिडिल ये ट्रांजैक्शन में इन लोगों के पैसे बहुत बन रहे हैं, यस, तो राइट। वही मॉडल अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हो सकता है कि शायद बेहतर हो जाए। चलें सोफिया, थैंक्स अ लॉट। क्लोजिंग थैंक की यू तरफ वेरी जाते हैं। मच। वह इसमें जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि एज अ क्लोजिंग रिमार्क्स 2 मिनट लें, बताएं हमारी ऑडियंस को व्हाट्स योर any guidance you want to give them as a just last remarks. देखिए, मेरा मैं कोई नहीं हूँ जो किसी को गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं कभी भी इस तरह की गाइडेंस नहीं देती, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए, अपने आप को ग्रो करना चाहिए। जैसे मैंने देखा है कि रिस्क लें, लुक फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने ये अपॉर्चुनिटी सही नहीं है, बट यू कैन एक्सप्लोर इट। तो एक्सप्लोर करना कभी ना रोकें, रिस्क लेना कभी ना रोकें, इंजॉय भी करें ज़िंदगी को, क्योंकि हर वक्त सीरियस भी नहीं रहना चाहिए, तो इंजॉय करें। फाइंड अ हॉबी, फाइंड अ प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट, क्या कहना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप, अगर आपको लगता है कि आप एक्टिविस्ट होकर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप वो करें। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे डोनेट करके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप वो करें। कहीं कोई फिजिकली कोई काम करके आप कर सकते हैं, तो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें और एक्सप्लोर करें, एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। आई थिंक ये भी एक चीज़ है, हमारे फील्ड में तो बहुत ज़्यादा है। चलो जी, perfect. So last words was contribute, explore, and take calculated risk. Thanks a lot, Sophia. It was very nice talking to you. I mean, पता नहीं चला, it's now almost 90 minutes. Thanks a lot for बिल्कुल। your time. I really appreciate, and I did आई a lot today. And I hope the audience has learned a lot as well. So the audience से मैं कहूँगा feedback दें अपना about the session. Comment कीजिए, बताएं, describe कीजिए how you like the session. और I hope you are able to take away something from tonight's session. Thanks a lot, Sophia, and thanks a lot, थैंक audience. यू, थैंक यू।